પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ભરતભાઈ શેઠ, સેક્રેટરી શ્રી વિશ્વેશભાઈ, આઈટી બાર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી આશુતોષભાઈ ઠક્કર, સેક્રેટરી શ્રી આશીષભાઈ ટેકવાણી, ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર એસોસિએશન નડિયાદના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી તારકભાઈ પટેલ, સેક્રેટરી શ્રી કંદરભાઈ ગજ્જર, ભાવનગર આઈટી બાર એસોસિએશન શ્રી રમેશભાઈ ત્રિવેદી અને સેક્રેટરી શ્રી અનિલભાઈ, જામનગર ટેક્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સંજીવભાઈ બુદ્ધ અને સેક્રેટરી શ્રી કૌપિલભાઈ દોશી, ડીસા ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી અમૃતભાઈ અને સેક્રેટરી શ્રી નરેશભાઈ પરમાર, આઈટી બાર એસોસિએશન મહેસાણાના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી જપનભાઈ યાજ્ઞિક અને સેક્રેટરી શ્રી મેહુલભાઈ દોશી, and our most respected today's speaker Shri Girishbhai Ahuja. It is આહુજા સાહેબનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાની જરૂર હોય જ નહીં, પણ એને લીધે આપણું માન વધે એટલા માટે હું એમનો આજે બાયોડેટા અથવા એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું. એમનું એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશનમાં કહું તો BCom from Sri Ram College of Commerce, Delhi University in the year 1965. MCom from Sri Ram College of Commerce, Delhi University in 1967. He has passed his chartered accountancy in the year 1970 and was rank holder both in intermediate and final examination of the Institute of Chartered Accountants of India. His PhD from Faculty of Management Studies, Delhi University in the year 2009. He is practicing as a chartered accountant mainly in the field of direct taxes. He was nominated by the Government of India as a member of task force for redrafting the Income Tax Act and new income tax law, and the report thereto was submitted to the Finance Minister on 18th August 2019. He was nominated by the Government of India as independent director to the Central Board of Directors of State Bank of India for 2 terms. He was nominated by the government with the approval of the Supreme Court to Board of Director to Unitech Limited. He was appointed as an independent director on the board of Ruchi Soya Industries Limited. He was appointed as independent director of other 3 limited companies. He was nominated member of the High Court High Powered Committee constituted by Government of India under the chairmanship of Justice A.P. Shah, Chairman Law Commission, to look into issue of applicability of MAT provisions in the case of foreign companies and FII and other issues relating to applicability of direct tax provisions which may be referred to it by government or civility from time to time. Sir has authored over 25 books on direct taxation, both for students and professionals, including concise commentary on direct taxes, compendium of issues on income tax and wealth tax, direct taxes ready reckoner, direct taxes law practice guide to TDS and taxation of capital gains. He is consultant on tax matters to various industries and non-profit making organizations. He has delivered more than 3,200 lectures on various topics of direct taxes organized by the ICAI, ICSI, Chamber of Commerce, Management Institute, and various other organizations. He is patron of Tax Law Educate Society, a non-profit making voluntary organization with the main objective to educate general public and professionals on taxation law and allied matters for last 10 years. He is president of SRCC Alumni Association for over 20 years. So this is his brief biodata. Now, I will reveal one more thing to you that which is more important. આપણે બધા જાણીએ છીએ દાનવીર કર્ણને,
દાનવીર કર્ણે શું આપ્યું હતું? એણે પોતાનો કુંડળ અને કવચ આપ્યા હતા અને મહાન દાનવીર કહેવાતા. એની જેમ જ આજે ડોક્ટર ગિરીશ આહુજા આપણને એક નોલેજ આપે છે, અને એ પણ પોતાનું બ્રેઇન અને પોતાની સ્પીચ આપીને. એટલે આ એક મારા હિસાબે દાનવીર કર્ણની કક્ષાએ પહોંચવાના દાનવીર કહેવાય. સર, અમે તો છે ને નાના નાના કન્સલ્ટન્ટ છીએ, અને કન્સલ્ટન્ટ એટલે ક્લાયન્ટ માટે દેવ કહેવાય. પણ તમે તો કન્સલ્ટન્ટના કન્સલ્ટન્ટ છો, એટલે દેવોના પણ દેવ છો, અને તમે મહાદેવ છો. એટલે મહાદેવ શ્રી ગિરીશ આહુજાજીને અમારા નતમસ્તકે વંદન, અને આ માઇક તમને સોંપીએ છીએ. પહેલી વખત સાહેબ એક હું પ્રશ્ન પૂછું છું, મારા મનમાં આ જે પ્રોવિઝન છે એના માટે એક ક્વેશ્ચન આવે છે કે સર આ વખતમાં, એટલે જ્યારે આપણી ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ડાઉન છે ત્યારે, whether it was really necessary to introduce this 206 provision. બસ આટલું કહીને હું આપની માઇક સોંપું છું. થેન્ક યુ. Thank you, sir. Thank you. Now, sir, the floor is yours. Sir, good evening to all. Good evening. President of the All Gujarat Federation of Tax Consultant, Advocate Bharat Shah ji, Honorary Secretary CA Vishwas Shah ji, Chairman of the Webinar Committee, Advocate Kartikeya Shah ji, Income Tax Bar Association Ahmedabad President, Advocate Ashutosh Thakur ji, Honorary Secretary Shri CA Ashish Tekwani ji, Chairman Study Circle Advocate Rupesh R Shah ji, Jamnagar, Tax Practitioner and Association Nadiad, President Tarak ji, and Honorary Secretary Kandeep J. Gujar ji. Then we have the Bhavnagar Income Tax Bar Association President Advocate Ramesh Ravedi ji, Honorary Secretary B. Tekwani ji. So then I have in front of me Jamnagar Tax Consultant Association President C.A. Sanjeev Budh ji, Honorary Secretary Kapil Doshi ji, the Diza Tax Bar Association President Amrit P. Mewale ji, Honorary Secretary Naresh Kumar Parmar ji, Income Tax Bar Association President Japan Yognik ji, Honorary Secretary Mahel Doshi ji, and of course, above all, my friend and past regional council member, of course, from Ahmedabad, C.A. Purushottam Khandelwal ji, ladies and gentlemen. देखिए सर, मैंने ये चीज जब पढ़ी तो आप कहेंगे कहाँ से लिखी थी? जो आपका वो आया था जिसमें आपने वो बना था, उससे पढ़ के मैंने आपको बोल दिया. नहीं तो मैं कई जगह को जानता नहीं, मुलाकात मेरी अब तो यही हो रही है, नहीं तो फिजिकल मुलाकात हो जाती थी. तो चलिए सर, मैं आपको बताऊं. सवाल पूछा गया ये क्यों लाया गया है और क्यों लाया गया पेंडेमिक की वजह से. सर बात ये है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has made a profile of every assessee and they are collecting data. They have a financial intelligence unit which they have prepared a profile and they are doing data mining now. इतनी डेटा माइनिंग हो रही है कि आप देखिए 18-19 प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो 19-20 में जानी थी, आपकी लास्ट डेट 30 सितंबर को बढ़ा दी गई. ये क्यों बढ़ाई गई? ये आपके फायदे के लिए नहीं बढ़ाई गई. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक गुडविल लेने की शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं. पहले क्या होता था कि उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, वो पहले शेयर नहीं करते थे. दे नेवर यूज्ड टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन. असेसमेंट के बाद 148 आता था कि वो ये आपकी चीज रह गई, ये चीज रह गई, ये चीज आ गई. अब क्या है? अब क्या है कि वो आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है. आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आपको 4 वार्निंग कर रहे हैं कि देख लीजिए, हमें पता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है. अगर तो आपने वो रिटर्न में दिखा दी है उसकी इनकम या जो भी है, तो हम कुछ नहीं कह रहे, नहीं तो अभी भी मौका है, रिवाइज कर दीजिए. ये जो आपकी एक्सटेंशन हुई है, ये कोई बिलेटेड रिटर्न की वजह से नहीं हुई है. बिलेटेड रिटर्न तो रह कौन सी गई है, बहुत थोड़ी बड़ी रिटर्न रह गई. बड़े लोगों ने तो पहले ही कर दी क्योंकि उनको पेनल्टी लगती है ऑडिट की वजह से, फिर बाकियों ने भी कर दी.
अब कोविड तो 20 मार्च के बाद आया है, वो तो कुछ लोग हैं जो हमेशा ही लास्ट मिनट पे करते हैं, उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अदरवाइज मोस्टली रिटर्न बड़ी बड़ी चली गई थी, क्योंकि पेनल्टी भी लगती है फॉर नॉट फाइलिंग ए रिटर्न 10,000 या 5,000। तो उनका पर्पस पुरुषोत्तम जी कुछ और है, वो अब गुडविल लेना चाहते हैं और पुरुषोत्तम जी को चिट्ठी लिख दी कि पुरुषोत्तम जी आपने ये ट्रांजैक्शन की है। अब पुरुषोत्तम जी देखेंगे, इनको तो पता लग गया, अगर तो उन्होंने वो इनकम दिखाई हुई है, अकाउंट फॉर प्रॉपरली की हुई है, तो कोई बात ही नहीं। नहीं तो मौका है पुरुषोत्तम जी, अभी भी रिवाइज कर दीजिए 30 नवंबर तक 2020। ये पर्पस है सर, जो वो डेटा माइनिंग करके आपको बता रहे हैं इन एडवांस। आजकल आपने 26 एस देख ही लिया है, टन्स ऑफ कितनी इंफॉर्मेशन 26 एस में आ चुकी है, हर चीज। अब तो जीएसटी का सेल भी, टर्नओवर भी आ जाएगा। अरे थोड़े दिन रुक जाइए, कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होकर आएगा लिस्टेड कंपनी का। अभी देखिए, अभी थोड़े दिनों में आ जाना है कि आप जो डोनेशन देंगे, जब तक आपका नाम वो 26 एस में नहीं होगा, उसके आपको उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अरे इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है उनके पास, वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। 26 एस में तो इतनी एआईआर की बात नहीं है, अब तो उनको पूरी डिटेल मालूम है आपके पास। मैं पुरुषोत्तम जी, मैं जब लॉ बना रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ये 360 डिग्री प्रोफाइल क्या है, जरा हमें भी दिखाओ। तो उन्होंने कहा जी अपना पैन नंबर दीजिए। मैंने अपना पैन दिया, तो पहली स्क्रीन में क्या आया, मेरा नाम, एड्रेस, ये पैन नंबर, वो पैन नंबर, वार्ड नंबर, ये तो ठीक है। दूसरी स्क्रीन में आया कि मेरी कितनी असेसमेंट पेंडिंग है, क्या क्या असेसमेंट हो चुकी है, 143(3) में हुई है कि 143(1) में ही रह गया है, या मेरे पास क्या ड्यू कोई है, पुराना ड्यू देना है, या मेरा कोई रिफंड है, सबको पता है, उसमें तो कोई बात नहीं थी। तो तीसरा आया तो उन्होंने मुझे दिखाया मेरे कितने बैंक अकाउंट इंडिया में हैं, उन सब की डिटेल उनके पास थी, विद क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके रिटर्न में आजकल बैंकों के नाम देते हैं ना, पहले तो एक ही बैंक के देते थे, अब तो सारे बैंकों के नाम देने पड़ते। मैं कहा वहां से ले लिया होगा। नेक्स्ट चीज आई, मेरी कितनी एफडीआर है और कितनी एफडीआर है, वो भी मैं पता है 26 एस में जब टीडीएस कट गया तो एफडीआर की डिटेलें तो मिल ही जाएंगी। कहता रुकिए, जो एफडीआर पर टीडीएस नहीं कटता, 10,000 से कम टीडीएस है, हमारे पास वो भी डिटेल है, क्योंकि 206AA में रिटर्न आती है और हमने वो भी डाल दिया है। पुरुषोत्तम जी वो तो हो गया। फिर मुझे कहते हैं आपके पास कितने शेयर्स हैं, कंप्लीट डिटेल ऑफ शेयर उनके पास थे। कमाल हो गया, मेरे जितने भी शेयर थे उन्होंने ले रखे थे एनएससी से, और वो एनएसडीएल जो भी है उनके पास पूरी डिटेल थी। अगला दिखाया मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड है। मैं देखने लगा तो एक मुझे म्यूचुअल फंड नजर आया जो मेरे पास भी नहीं लिखा हुआ, 2 लाख रुपए का था सर। मैंने कहा ये दिखाइए कौन सा है। वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पुराना था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आजकल कौन करता है, बाकी दूसरे हो गया। वो मैंने कोई 5-10 हजार रुपए जमा कराया था ग्रोथ स्कीम में, वो बढ़कर 2 लाख हो गया होगा। लेकिन क्या, जब 20 साल पहले लिया था तो उस वक्त कोई ज्यादा रिवाज नहीं होता था ये लिंकेज का, पैन नंबर मांगते थे नहीं मांगते थे। उन दिनों में क्या हुआ कि मैंने ओल्ड एड्रेस था, मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, ईमेल उनके पास थी नहीं, वो ओल्ड एड्रेस पे देते रहे, वहां पर अब ओल्ड एड्रेस में जगह ही नहीं, तो वो पड़ा रहा होगा। तो मैंने जब देखा तो मैंने 2 दिन के बाद 2 लाख का फायदा हो गया मुझे। मैंने कमाल है, थैंक यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर योर काइंड हेल्प टू मी। ये भी डिटेल थी। उसके बाद कितनी मेरी एसेट्स है, कितनी मेरी लाइबिलिटीज है, उसकी भी डिटेल थी टक्कर साहब, कंप्लीट डिटेल। वो तो मुझे लग गया, क्योंकि मेरी 50 लाख से ऊपर जिसकी रिटर्न जाती है तो एसेट लाइबिलिटी देनी पड़ती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट बताया मैं कितनी बार फॉरेन विजिट किया है। मैंने क्या मतलब कि जितनी बार आपने इंडिया से फॉरेन विजिट किया है हमारे पास पूरी डिटेल है। मैंने कितने साल की डिटेल है, कहता 10 साल की तो यही है। मैंने कहा उसके पुरानी, कहता उसके पुरानी हार्ड डिस्क में रखी हुई है। आप इतनी बार बाहर गए, मैं क्या मर गया। मैंने कहा कहाँ गए, कहता ये लो, ये न्यूयॉर्क गए थे, आप ये गए, आप आबू धाबी गए, आप बहरीन गए, आप कुवैत गए, आप। मैंने कहा मैंने तो वहां का पैसा खर्चा ही कोई नहीं, वो तो मैं लेक्चर देने गया था। दुबई वालों ने भी लेक्चर कराया था, कुवैत वालों ने भी कराया था, बहरीन वालों ने भी कराया था, मस्कट वालों ने, मैं तो गया, कतर वालों ने भी कराया। कहता ये हमें नहीं मालूम कि किसने टिकट खर्ची, हमने तो आपके रिकॉर्ड में डाल दिया कि आप फॉरेन विजिट के लिए गए थे। हाँ, मैंने कहा अमेरिका तो मैं अपने पैसे से गया था, नो डाउट।
कहता वो डिटेल है। पर मैंने कहा ये क्यों डिटेल है? कहता जी हमें पता लगे कि आप क्या खर्च कर रहे। मैंने कहा वो तो आपको पता लग गया कि मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क से दिल्ली गया, लेकिन न्यूयॉर्क के बाद में कहीं जो गया आगे, चलो लास वेगास हो आया, कैलिफोर्निया हो आया, या मैं वहां से वो चला गया देखने कई कई जगह, वाशिंगटन चला गया, इधर गया, उसका कैसे पता लगेगा? कहते हमें जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहते आप ही बता देंगे। जब आप घूमने जाते हैं तो अपनी फोटो डाल देते हैं फेसबुक में, तो हम कहते हैं आई लाइक इट, और वो लाइक करके उसका भी रिकॉर्ड बना रहे हैं जिसकी सर्वेलेंस करनी है, जिसका रिकॉर्ड रखना है, और उसको फेसबुक में दे दिया। अरे डक्कर साहब मैं आपको बताऊं, हमारी जो लेडीज हैं शादी ब्याह में जाती है पूरी लोडेड विद ज्वेलरी, और कितनी बड़ी ड्रेस पहन के जाती हैं और अगले दिन फेसबुक में डाल देती है। वो कहता है वी लाइक इट मोर। वो तो उसका भी इंफॉर्मेशन रखा है कि आपके पास क्या क्या ज्वेलरी है, उसकी लेडीज की साइड वाली फोटो रखी हुई है। और मेरे को ये भी बताया कि आप इंडिया में कितनी विजिट करने गए। मैं कहा वो क्यों रखा हुआ है? वो तो कहता जो ज्यादा करते हैं हम उसकी भी रखते। उस साल मैं 248 टाइम्स गया था इंडिया की विजिट में। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा 124 बार गया है, 124 बार आया दिल्ली। मैंने कहा सर मैंने तो 1 रुपया भी नहीं खर्चा। 124 बार कभी पुरुषोत्तम जी ने बुला लिया, कभी कोई बॉम्बे वाले ने बुला लिया, कभी चेन्नई वाले ने बुला लिया, कभी किसने बुलाया, उनकी टिकटें आती हैं, वहीं जाता हूँ, वही ठहराते हैं, वही करके मुझे भेज देते हैं। कहते हमने ये कब कहा कि आपने पैसे खर्चे या नहीं खर्चे? वो तो आप अपनी रिटर्न में बताना, या आपने वहां जब स्क्रूटनी आएगी बताना। हमें ये पता कि आप गए। मैं मर गई, तो मेरा रिकॉर्ड तो वो भी था। मैंने कहा मुझे दे दो पुरुषोत्तम जी। कहते क्यों? मैं कहा मेरा सीपी आवर जो अगर गलती से नहीं रह गए तो मैं वहीं से ले लूंगा। वहीं से लेंगे। मैं वहीं से सीपी आवर्स ले लूंगा कि मैं गया था, आपने मेरे सीपी आवर्स क्यों नहीं डाले? सर इतनी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न की होती है। एक एक इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉपर्टी बेची तो ही 30 लाख के ऊपर है, कोई ट्रांजेक्शन करी 10 लाख से ऊपर पैसा कराया वो भी ट्रांजेक्शन है, कोई क्रेडिट कार्ड का कैश की पेमेंट है वो भी ट्रांजेक्शन है। मैं तो घबरा गया। मैंने कहा ये क्या है? पूरी डिटेल है आपका, पूरा मेरी जनपत्री उनके पास। वाह भाई वाह। मैंने कहा और क्या है? मैंने कहा सर, कहते जी हमें तो और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप फ्लिपकार्ट से, आप अमेज़न से सामान मंगवाते हैं पुरुषोत्तम जी, और आजकल तो सारे ही मंगवा रहे हैं, तो घर बैठे हैं, बाहर जाके करना नहीं है। कहता है जो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है उसकी तो रिकॉर्ड हमें आ ही जाता है, जो कैश पेमेंट करते हैं उसकी डिटेल मांग लेते हैं, और हम उसका देख लेते हैं कितने कैश की चीजें खरीदी है इन्होंने। अरे सर ध्यान रखना, अपने बच्चों को समझा देना, कच्चे का काम नहीं करना। पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है कि आपने क्या खरीदा है। पुरुषोत्तम जी मैं एक दिन क्रोमा के शोरूम में गया था, मैंने आपको सुनाया भी था, 4 साल पहले की बात है। एक पावर बैंक लिया और वो 1800 रुपए का था, तब मैंने लिया। मैं निकलने लगा, कहने लगा आप अपना मुझे टेलीफोन नंबर दे दो। मैंने फोन नंबर दे दिया, तो कहते रुको सर आपका आईपैड कैसे काम कर रहा है, आपका आई प्रो कैसे काम कर रहा है, आपका आईफोन कैसे काम कर रहा है, अपना वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रही है। मैंने कहा मैंने तो तेरे से कभी खरीदी नहीं। कहते सर इंडिया में क्रोमा के शोरूम से कुछ भी खरीदा है उसकी डिटेल ये रही, पूरी आज तक का रिकॉर्ड। तो टक्कर साहब ये कंप्यूटर एज है, यहाँ तो हर चीज मिल जाती है, हर चीज, और इसकी इंफॉर्मेशन वो मांग लेते हैं अगर जो उनके ऊपर भी सर्वेलेंस करनी है, उनके पास पूरी डिटेल है। थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए, वो कहेंगे ये रही इनकम टैक्स रिटर्न, साइन कर दो, ये आपकी इनकम है, हमारे पास पूरी डिटेल है आपकी इनकम के बारे में। ये वक्त आ गया है, तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, वो जमाने चले गए, अब तो बाकी भी चले गए फेसलेस के बाद, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ठक्कर साहब के पास जब पुरुषोत्तम जी का केस आता था, 143D का क्लाइंट नोटिस लाता था, कहते जा जा मैं हूं ना, तू जा यार मैं हूं ना, अब कह के दिखा दे मैं हूं ना। अब तो नॉलेज बेस्ड काम है, जिसको नॉलेज होगी अच्छा केस प्रेजेंट करेगा, अच्छा केस बनाएगा, वो ही जीतेगा। वो जमाने चले गए, अब कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्ट, अब डिस्कनेक्ट हो गया। अब तो अपने ऑफिस में बैठकर पुरुषोत्तम जी माला फेरते रहिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाना, थोड़े दिन और रुक जाइए, बाकी चीजें भी अमेंडमेंट आ गई है, एक एक चीज ऑनलाइन होगी, कोई 263 नहीं होगा, सब ऑनलाइन, 264 ऑनलाइन, 154 ऑनलाइन। अरे कोई चीज सोचो, अपील तो आ ही गई है, पेनल्टी भी आ जाएगी, सब ऑनलाइन। अरे जाना ही नहीं है डिपार्टमेंट में, आप तो रास्ता ही भूल जाएंगे उनका। डिपार्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं है,
अब तो टेक्नोलॉजिकली सेवी हो जाओ, टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल आपको करना ही पड़ेगा अपने डेस्क पे बैठकर। सो मैं ये बात कर रहा हूं सर, उनके पास टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो पूछा था मेरे से वो ये है कि वो ये भी चाहते हैं कि कुछ लोग क्या करते थे सर, माल देते थे अमेजन को। आजकल तो बहुतों ने दिया, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर भी अपनी चीजें अमेजन के थ्रू बेच रहे हैं, और वो छोटे तो ज्यादा बेच रहे हैं क्योंकि सस्ता में मिल जाती है उनको। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर और छोटे छोटे ट्रेडर भी उनके थ्रू दे रहे हैं। अब होता क्या है कि वो इनकम ही नहीं दिखाते, रिटर्न नहीं भरते, और अमेजन के थ्रू माल बेच रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया 194A में ओ में बोला ना कि अब इसके ऊपर क्या होगा, टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय दीज डिजिटल ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर माल तो बेच रहे हैं अमेजन के थ्रू। सर मैं बताऊं पुरुषोत्तम जी, आजकल किताबें भी तो बिक रही है ना अमेजन के थ्रू। अब जो पब्लिशर है उनके पास तो वैट भी नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं है, किताबों पे तो जीएसटी है ही नहीं। तो कोई इनकम दिखाते थे, कोई दिखाते नहीं थे, सेल ही नहीं दिखाते, जीएसटी तो है ही नहीं। अब क्या होगा, अब तो अमेजन से या फ्लिपकार्ट के थ्रू जो भी चीज बेचेंगे उसका तो उसका टीडीएस कटेगा, और टीडीएस कटते ही उनको वो सारी की सारी सेल दिखानी पड़ेगी। जीएसटी वालों को भी फायदा हो गया। अब आप देखिए 3CD फॉर्म में जीएसटी का सेल का भी डिटेल देनी है। आप देखिए उनके पास डेटा माइनिंग के लिए ये टीसीएस लाए, और कोई फायदा नहीं है। अरे 50 लाख से ऊपर की इंफॉर्मेशन आ गई तो क्या करोगे? वो कहता है ये बड़े आदमी हैं, क्या ये लोग अपनी सारी की अकाउंट फॉर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि पुरुषोत्तम जी 60,000 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट लोगों ने ले लिया, जिसमें माल तो गया ही नहीं, सिर्फ बिल ही बिल था। आपको तो पता ही है, बिल ही बिल था। तभी तो 271 AAD ले आए कि अगर कोई फॉल्स एंट्री होगी या कोई एंट्री ओमिट होगी तो उस केस में आपको 100% ऑफ द अमाउंट पेनल्टी पड़ेगी। आया नहीं आया 271 AAD? और उसके साथ ये भी कह दिया कि अगर किसी ने दिलवाई है वो एंट्री तो उसके ऊपर भी हु कॉजेस टू मेक दैट एंट्री, उसके ऊपर भी 100% पेनल्टी। सर डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग हो गया है, और कुछ तो कर्म हमारे ही हैं, हमारे जो हमारे क्लाइंट्स है सर, उनकी भी मजबूरी समझता हूं, लेकिन आटे में नमक चलता है और सारा नमक तो नहीं चलेगा सर। अब तो आपको सुधरना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, मैं कहता तुम होगे HNS, हम नहीं सुधरोगे, सुधार देंगे मोदी जी। और ये बता दूं, ये सोचना कि मोदी जी 2022 को वापस नहीं आएंगे, ये मुगालते में नहीं रहना, वापस तो वही आएंगे। ये सोच के चलना, चाहे यहाँ कांग्रेस ही बैठा हो, कोई बुरा मान जाए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना कांग्रेसी हूं ना बीजेपी का हूं, लेकिन मैं आदमी को जानता हूं, इसकी कैपेबिलिटी जानता हूं, इसकी ऑनेस्टी जानता हूं। उनके नीचे कुछ भी हो लेकिन वो खुद ऑनेस्ट हैं, और जो बात वो ठान लेते हैं वो छोड़ते नहीं है। हमने कहा ये फेसलेस असेसमेंट के बारे में हमने रिकमेंड किया था सर, अभी रीजनल लेवल जोनल लेवल पे लाओ, लेकिन वो कहते हैं ना, ऑपरेशन तो एक ही बार कर देना है, छोड़ना नहीं है, करेंगे तो पूरा का पूरा करना है। करना पड़ गया सर, डिपार्टमेंट क्या करे, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ गई, करना पड़ा। मैंने उनको बोला 25 अगस्त तक वो भी कर दोगे, वो जो 25 सितंबर तक करना था। कहता जी करना क्या, मजबूरी है, हम तो लाना ही पड़ेगा फेसलेस अपील। हो गया काम, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं आप लोगों सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने क्लाइंटों को बोल दीजिए अब जमाना बदल गया है, अब कंप्यूटर एज है, टेक्नोलॉजिकल एज है, कोई गलत काम करेगा तो फंस जाएगा, कहीं ना कहीं रगड़े में आ जाएगा। तो बेस्ट उसका यही तरीका है अपना, क्योंकि अब कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है, कोई स्टेट ड्यूटी कभी आने के भी चांसेस कम है। अरे टैक्स दो और जान छुड़ाओ, अब वक्त नहीं है ना, फिर करना है तो फिर भैया संभल के करना। क्योंकि मैं आप बता दूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और इसीलिए ये रोज TDS TCS के नए नए प्रोविजन आते हैं। देखिए 0.1% कुछ भी नहीं है पुरुषोत्तम जी, 0.1% क्या है? अगर 10 लाख के ऊपर 1,000 रुपया TCS ही है ना, उनका पर्पस, अगर 50 लाख से ऊपर जो आएगी पेमेंट, और 50 लाख से ऊपर अगर 10 लाख एक्स्ट्रा आ गया तो 1,000 रुपये ही है ना पुरुषोत्तम जी। उनको वो 1,000 से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आप
अकाउंट फॉर हो गए, आपका नाम वहां रजिस्टर हो गया, अब आप हेरा फेरी कर नहीं सकेंगे, अब आपको बताना ही पड़ेगा। तो पर्पस और है डेटा माइनिंग का, चाहे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला हुआ हो 194, चाहे ये 206C1H आया हो जिसमें आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, चाहे वो 206C1G आया हो कि पैकेज टूर ऑपरेटर। कई बार कहते थे अहमदाबाद वाले, चलो सबको ले जाते हैं सिंगापुर घुमाने, या सबको ले जाते हैं बैंकॉक। मैं नाम बैंकॉक का लेना नहीं चाहता था, अब निकल गया तो मैं बोल देता हूँ कि सबको ले जाने का, कि भाई ब्रांच ले जा रही है, चलिए सबको घुमाने ले जाते हैं। कहां पर? बैंकॉक पे या सिंगापुर पे लेके जाओ घुमाने, पैकेज टूर बनाओ, आपका एक एक आदमी का टीसीएस का आएगा कलेक्शन, और फिर आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि कहां से ये क्या खर्चा किया है। पैकेज टूर ऑपरेटर में तो लिमिट भी कोई नहीं, हर आदमी का इंडिविजुअल होगा, क्योंकि टीसीएस जो कलेक्ट होगा तो आप ही को क्रेडिट मिलना है ना, इसको अहमदाबाद ब्रांच को थोड़ी मिलना है, या टैक्स बार ऑल गुजरात टैक्स फेडरेशन को मिलना नहीं है। ऑल डिक्लेयर कहिए चलो आपका रेजिडेंशियल कोर्स करते हैं सिंगापुर में जाके, कर लो, करो ना, लेकिन सब कुछ ठीक होगा तो सही है, करके देख लो, बाकी फंस जाओगे, मैं आपको बताऊं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ा सा, अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये भूमिका बंदवादी उन्होंने ये पूछने के लिए ये लॉ क्यों आ रहे हैं, समझ में आ गया? पेंडेमिक की वजह से नहीं आ रहे, ये लॉ तो पकड़ने के लिए आ रहे। ये कोई एक साल के लिए थोड़ी है, ये तो पूरे फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है जो वो लाए। अब जरा कोई यहाँ पर कुछ तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 तो मेरे सामने हैं, आई कांट टॉक टू दी वॉल्स। पुरुषोत्तम जी मेरे सामने हैं, ठक्कर साहब मेरे सामने हैं, लेकिन बाकियों ने अपनी फोटो लगा के चले गए। हरित भी है, हरित अग्रवाल, मैं नाम लेना भूल गया उनका, लेकिन फोटो लगा के मत जाइए सर, अपनी शक्ल दिखाइए, मुझे अच्छी लगेगी आपकी शक्ल, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आपका सिर हिल जाएगा तो मैं खुश हो जाता हूं, आपको कुछ फेस रीडिंग कर लेता हूं। तो मेरे पास अभी भी 3 फोटोएं सामने नजर आ रही हैं, वो चले गए, जिसको जाना है तो दूसरी जगह चले जाए। यही तो इन्होंने तो शुरू किया था हमारे को, जिसने इंट्रोड्यूस कराया, नाम पूरा, उनका नाम पूरा क्या था सर? अरविंद जी, अरविंद जी है ना? अरविंद जी, हाँ जी अरविंद जी, मैं तो मिलता हूँ बहुत बार इनको। अरविंद जी को इसलिए कहा कि अरविंद जी ने ये छेड़ा था जो 10 मिनट मैंने बोल दिया कि क्यों लाए हैं, शुरुआत तो करके अरविंद जी इसलिए लाए हैं। अब शुरू कर रहा, अगर कोई यहाँ पर किसी के पास एक्ट है तो मैं चाहूंगा 206C1H को पढ़े, बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है, लेकिन उसके बाद जो सर्कुलर आया है उसकी वजह से कुछ रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज तो बेड़ा गर्क कर दिया, ये एक्शन ही बड़ा गलत है। तो एक आदमी जिसके पास एक्ट है, अगर वो पढ़ना चाहे तो 206C1H मेरे साथ पढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि लोगों को समझ में आए। मैं तो बोलूंगा, मैं किताब आगे रखता नहीं, मैं चाहता हूं आप किताब आगे रखें ताकि लोगों को समझ में आए कि एक सब पर्पस क्या है। 20 निकाल रहे हैं, अरविंद जी निकाल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सर आप अनम्यूट होकर एक एक लाइन पढ़ना 206C1H की। मेरे को पता है, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं रोकता रहूंगा बीच में आपको, जहां मैं रोकूं आप रुक जाना। अरविंद जी निकाल रहे हैं, पहले तो निकालने में भी टाइम लगता है ना, हम लोगों को तो एक्ट देखने की आदत कहाँ है, आदत नहीं है एक्ट देखने की, एक्ट कौन पढ़े मुसीबत, और फिर वो 1H ढूंढने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। 206C1H निकाल लिया सर अरविंद जी? यस सर। आइए सर, अब पढ़े, इसमें लिखा है एवरी सेलर, आइए पढ़िए सर आगे। बीइंग एवरी पर्सन सॉरी एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर, हाँ पढ़िए who पढ़िए। receives any amount as consideration for यही रुक जाना, पहले लिखा है एवरी पर्सन हु बीइंग ए सेलर, मतलब सेलर को करना है, बीइंग ए सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन, आगे बोलिए सर, for sale any good सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू, आप बोलिए exceeding 50 lakhs rupees in a previous year। यही रुक जाना सर। अब देखिए कितनी बड़ी गलती करी है, इन्होंने कहा है कि एवरी सेलर, सॉरी एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन, आगे क्या लिखता है, फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू
exceeding 50 lakh in a previous year. यही रुक जाइए. यहां तो ये कह रहे हैं कि आपकी सेल 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए. आप देख रहे हैं whose sale value और aggregate value exceed 50 lakh. लेकिन बाद में क्या करें? Other than those who are exporting goods outside India or whose case tax has been collected at source under section 206C1, 1G, 1F, 1G. अब आगे पढ़िए सर. Shall, सर पढ़िए. वहीं से पढ़िए जहां से छोड़ा था आपने. At the time shall export out of India or goods covered in subsection 1 or subsection 1F or subsection 1G shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding exceed 50 lakh. सुनिए 50 सर. lakhs ठीक है सर. सुनिए सर. सुनिए. अगर आप इस सेक्शन को income tax. चल सर ठीक है. अब इस सेक्शन को पढ़ें तो ऊपर तो सेल की बात करता है 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए इन द प्रीवियस ईयर, और नीचे बात करता है कि जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो 0.1% ऑन द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख पे करना है. इससे तो परसोत्तम जी ये लगता है कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए. सेल भी 50 से अबव होनी चाहिए और अमाउंट भी रिसीव्ड जो होना चाहिए वो 50 से ज्यादा होना चाहिए. लेकिन उनकी इंटेंशन ये नहीं, ये गलती लिख गए. अब सर्कुलर में लिख दिया है सेल की तरफ तो ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि इनके पास 206C1I में एक पावर ले ली थी कि भाई गाइडलाइंस हम इशू करेंगे, अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो वी विल इशू गाइडलाइंस. उसके लिए इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया. उस सर्कुलर में क्या कह दिया कि हमें नहीं पता आपकी सेल कितनी है इस साल, हमें नहीं पता, हम तो चाहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका कंसिडरेशन मोर देन 50 लाख है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख. ये बात समझ में आ रही है सर? किसी को बीच में टोकना तो टोक देना. आप पहले सेल की बात करते हो क्योंकि लिखा है ऑफ ए अमाउंट सेल वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख और एग्रीगेट एक्सीडिंग इन ए प्रीवियस ईयर. फिर इसको कहते हैं ना, क्योंकि ये दो चीजें तो हो ही नहीं सकती. ये तो कह रहे किसी भी साल की सेल की हो पास्ट में, हमें नहीं पता. ऐसा आना चाहिए. इवन पुरानी जो भी पैसा 1 अक्टूबर के बाद आएगा टीसीएस कलेक्ट करना अगर सारे साल में 50 लाख से ऊपर अमाउंट रिसीव किया बायर से. आप समझ रहे हैं? एक तो पहले मैं ये बता दूं, आपने सेल लास्ट ईयर की हुई है और 30 सितंबर को पैसे ड्यू हैं. अगर आपको पूरे साल में 50 लाख से ऊपर रिसीव हुए तो 50 से ऊपर का आपको टीसीएस कलेक्ट करना है. मैंने सेल 19-20 की करी है, मैंने सेल 18-19 में करी है. मेरा कोई आउटस्टैंडिंग पैसा पड़ा है, वो कहता है वो आउटस्टैंडिंग अगर इस करंट में रिसीव होगा तो 30 सितंबर तक रिसीव हुआ उसको तो छोड़ दो. 30 सितंबर वाले पे तो टीसीएस है ही नहीं, क्यों 1 अक्टूबर से आया, पहली से आया तो छोड़ दो. लेकिन रुकिए, अगर 30 सितंबर तक 70 लाख आ गए तो भी छोड़ दो, 30 सितंबर तक 70 आ गए तो भी छोड़ दो. लेकिन 1 अक्टूबर से अगर 1 रुपया भी आएगा तो टीसीएस कलेक्ट करना. अगर 30 सितंबर तक 40 ही आए हैं तो 10 लाख और छोड़ दो, और फिर 10 के बाद जो पैसा आएगा उसके पास कलेक्ट करना 0.1%. मेरी बात को समझ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं? उनका सेल से कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, रिलेशन ये है सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं लिखा कब सेल ऑफ गुड्स करें. वो कह रहे नहीं तो कभी लिंकेज नहीं होगी, आप फंस जाएंगे. क्योंकि सेल ऑफ गुड्स करो, लिंकेज करो, फिर पैसा आए कब आए. नो 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 नो, आपके पास कोई भी पैसा, आपका पैसा कोई भी रिसीव हो रहा है 1 अक्टूबर में तो पहले तो क्वेश्चन करो क्या ये सेल ऑफ गुड्स का है. आप कहते हैं यस. कब किया? नो रेलेवेंस. दूसरा क्वेश्चन करो 30 सितंबर तक कितने पैसे रिसीव हुए. अगर 30 सितंबर तक 50 से ज्यादा हो गए तो अब तो कलेक्ट करना शुरू कर दो. अगर 30 सितंबर तक 50 से कम हुए तो जब तक 50 नहीं हो जाते तब तक टीसीएस कलेक्ट नहीं करना. उसके बाद जितना भी होगा
उसके ऊपर 0.1% कलेक्ट करना। ये बात समझ में आ रही है? पहले सर ये समझ में आ रही है? ये इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, सेल हैज नथिंग टू डू। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि पिछले सालों को 30 सितंबर, क्योंकि हमने लॉ अक्टूबर से बनाया है, तो 30 सितंबर तक कितने भी पैसे रिसीव कर लो, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, हमने टीसीएस कलेक्ट नहीं करना भाई। लेकिन जो ही बढ़ गया 50 से ऊपर और 1 अक्टूबर आ गई, तो उसमें से हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। वो अभी तो 0.1 कह रहा हूं, लेकिन हो तो वो 0.075 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है 25% की जो वो तो टेम्पररी है ना, वैसे तो 0.01 ही है ना। ठीक है जी, आपको कलेक्ट करना है, सेल को नहीं देखना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सुनिए, सुनिए सर, गुड्स का मीनिंग क्या है वो तो दिया ही। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? अब मैं सवाल आता है, गुड्स के लिए मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखूं कि गुड्स के लिए मैं जीएसटी एक्ट देखूं? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन दूर की है, वो मेरा बहुत दूर का रिलेशन है। मेरा सगा भाई तो कौन है? जीएसटी एक्ट ही तो है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का भाई कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे कहां जाना चाहिए? लॉ ने ये लिखा है, जब कोई डेफिनेशन ना दी हो अपने एक्ट में तो दूसरे एक्ट में देखे। लेकिन कौन से एक्ट में देखूं? सेल्स ऑफ गुड्स में देखूं पुरुषोत्तम जी, कि अपने भाई के गुड्स में देखूं? छोटा भाई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वहां जाके देखूंगा, और वहां पे डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन वहां जो डेफिनेशन दी है उसमें जो शेयर एंड सिक्योरिटीज पे ना, उन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है कि नहीं काटना शेयर एंड सिक्योरिटीज पे। अगर आप देखना इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, लेकिन सेल्स ऑफ गुड टैक्स में शेयर्स एंड सिक्योरिटी भी कवर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी भी कवर्ड है, सारी चीजें तो कवर्ड है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कवर्ड हो, शेयर सिक्योरिटी। तो शेयर सिक्योरिटी में काटना है कि नहीं काटना? तो वो पता क्या कह रहे हैं भाई, छोटे भाई ने लिखा है, लेकिन छोटे भाई ने सेल एंड सिक्योरिटी को एग्जेम्प्ट किया है तो गुड्स ही, वो है तो गुड्स ही, लेकिन एग्जेम्प्ट किया है। इसलिए रुकिए, ये सेल ऑफ गुड्स में आएगा। मैं कहा मारोगे? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी। मैं कहा इंतजार करिए। अगला सवाल पूछा, सर आपने कब काटना है? अब आप ध्यान से सुनना, आपका डेफिनेशन सेलर की दे रखी है एक्सप्लेनेशन में, और सेलर की डेफिनेशन में लिखा है सेलर मीन्स ए पर्सन। जरा मैं कहूंगा पढ़िए, मैं जान के कहूंगा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, मैं उसको अंडरलाइन करके फिर आपको दोबारा लाऊंगा। तो सर पढ़िए जरा सेलर की डेफिनेशन। Seller means a person whose total sales, gross पॉलिसी, or turnover from the business carried on प्लीज 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 यही रुकना, फ्रॉम दी बिजनेस, बिजनेस ध्यान रखना यहाँ, बिजनेस। आगे पढ़िए, आगे। carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out, not being a person as the central government by वो ठीक है, वो गवर्नमेंट कह सकती है कि एक ये नहीं काटेगा। सुनो सुनो, अब देखिए, इस साल मुझे काटना है, कलेक्ट करना है, तो मुझे टर्नओवर किसका देना है? पिछले साल का। एम आई राइट? टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट किसकी होनी चाहिए? बिजनेस की होनी चाहिए। बिजनेस होना चाहिए मेरा, सर मेरा बिजनेस होना चाहिए। समझ में आ गया पहले? ओके। लेकिन ऊपर क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स। वहां तो नहीं लिखा इन विच यू आर कैरिंग ए बिजनेस। अब सुनिए सर, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस था लास्ट ईयर 15 करोड़ का टर्नओवर था। इस साल मेरी पर्सनल ज्वेलरी है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। इस बार मेरी पर्सनल ज्वेलरी है, मैंने पर्सनल ज्वेलरी 70 लाख की बेच दी, बेची, मैं सेलर हूं, और मैंने कलेक्ट किया 70 लाख। टीसीएस कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्योंकि कंप्लायंस के लिए तो कह दिया पिछले साल की टर्नओवर देखो। किस चीज की देखो? बिजनेस की देखो। अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और 10 करोड़ से ऊपर हूं और इस बार मैंने सेल ऑफ गुड्स किया, मैंने ज्वेलरी बेची जो मेरी पर्सनल है, तो भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? वहां नहीं लिखा सेल ऑफ गुड्स ऑफ द बिजनेस, वहां लिखा सेल ऑफ गुड्स।
और नीचे लिखा है बिजनेस। अरे ये विरोधाभास है। विरोधाभास ये है ना कि एक तरफ तो सेल है। अगर मैं प्रोफेशनल हूं, मैं तो कोई गुड्स नहीं बेचता, मेरा टर्नओवर तो नहीं देखा जाएगा परसोत्तम जी, नहीं बेचा जाएगा ना। मैंने शेयर बेचे जो मेरी इन्वेस्टमेंट के हैं, कैपिटल एसेट हुआ, कैपिटल गेन, तो मुझे कलेक्ट करना है? जी नहीं, जी नहीं, मुझे नहीं कलेक्ट करना। मुझे क्यों नहीं कलेक्ट करना? शेयर बेचा तो, क्योंकि मेरे तो टर्नओवर ही नहीं है पिछले साल का, मैं कवर्ड ही नहीं हुआ सेलर। पहले तो मुझे सेलर कवर्ड होना पड़ेगा, अगर सेलर कवर्ड हूं तो फिर सेल ऑफ गुड्स देखना पड़ेगा। मैं सेलर ही नहीं। लेकिन अगर आप मेरे एक सोल प्रोप्राइटरी काम है सर, और मैं माल बेचता हूं, ट्रेडर हूं, और लास्ट ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ है, अब मैं कोई भी कैपिटल एसेट बेचूं, अगर वो गुड्स है तो मर गया। क्यों? टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कैपिटल एसेट बेच रहा हूं, मैंने अपने शेयर बेचे पुरुषोत्तम जी, मेरा माल बेचा मैंने कोई और, मेरा ट्रेडिंग का काम है, 15-10 करोड़ से ऊपर है, और इस बार मैंने अपने शेयर बेच दिए 50 लाख से ऊपर के, और मैंने कलेक्ट किए, चाहे मैंने वो कैपिटल एसेट हो, वो कहेगा ये तो गुड्स है, लाइए टीसीएस कलेक्ट करिए। आप अंदाजा लगा रहे हैं ये क्या है? या तो ऊपर भी बिजनेस लिखते, ऊपर बिजनेस लिखा नहीं है, नीचे पहले जब मैं उनको टेलीफोन क्या कहते हैं, कहीं भी बिजनेस नहीं लिखा, मैं जी पढ़ तो लो, नीचे बिजनेस लिखा है। कहते हैं उनको भी नहीं पता जो बनाने वाले हैं, लिख दिया। अब मेरी तो रोज डिस्कशन होती है, मैं ये क्या कर दिया आपने, नीचे गुड्स लिख दिया, ऊपर फिर वो डिफेंड करते हैं अपने आप, और डिफेंड करके कहते हैं हाँ 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 पहले सेल होनी चाहिए, ला वो तो कंप्लायंस के लिए है। जब तक आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं है तब तक ये लगेगा ही। ठीक है सर, पहला पॉइंट। लेकिन रुकिए रुकिए, समझिए टक्कर जी, मैंने कहा पिछली बार का मेरा टर्नओवर 12 करोड़ था, ओके, इस साल मुझे टीसीएस काटना है, कलेक्ट करना है, लेकिन इस बार कोविड हो गया, मेरा टर्नओवर कम हो गया, अगले साल जो पेमेंट आएगी 50 लाख से ऊपर भी, क्या टीसीएस कलेक्ट करना है? नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो जाना है। 19-20 मैं बता रहा हूं, 19-20 का टर्नओवर मेरा 15 करोड़, 20-21 में टीसीएस कलेक्ट करना है। 20-21 में क्योंकि ये कोविड आ गया, पेंडेमिक हो गया, मेरा टर्नओवर तो सबका कम हो गया। हो सकता है मेरा टर्नओवर 9 करोड़ का ही रह जाए। अब मेरा 9 करोड़ रह गया तो उस अगले साल मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, चाहे मैंने माल पहले का बेचा हुआ है, मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो ये भी याद रखना है। एम आई राइट सर? हाँ तो सिर तो लाता जो मेरे सामने, मुझे याद रखना है। अब अगला पॉइंट, मैंने उनसे सवाल पूछा, टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है? पिछले साल का टर्नओवर जीएसटी लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि अभी तो आपने कह दिया कलेक्शन का टाइम जीएसटी लेस नहीं करना, बोला है ना। खैर वो तो मैंने ही कराया था सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं खुद बोलूंगा, मैं कमिट करूंगा, मैंने करवाया। हुआ क्या पुरुषोत्तम जी, हमारे जो पतंजलि का माल बिकता है उसमें कुछ में जीएसटी 5% है, कुछ आइटम पे 12% है, और कुछ आइटम पे 18% है, कॉस्मेटिक की आइटम पे। सपोज मैंने एक बिल बनाया 2 करोड़ का, उसमें 5% आइटम वाला भी है, 12% आइटम वाला भी है, और 18% आइटम वाला भी है, और मुझे 1 करोड़ पे आया। अब बताइए जीएसटी कैसे लेस करूं? या 1.5 करोड़ आ गया, कौन सा वाला जीएसटी लेस करूं? 5% वाला, 12% वाला कि 18% वाला? मर गया ना, कैलकुलेशन ही करता रह जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये बात तो अच्छी है, और 0.1 तो बहुत कम होता है, चलो जीएसटी लेस नहीं करना। तो जीएसटी लेस नहीं करना है, आप मुझे गाली देंगे लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। आप भी कोई एसेट आपके डीलर हो सकते हैं जिसके पास 2 रेट हो, 3 रेट हो, तो वो रेट अलग अलग होगा तो क्या करेगा? पेमेंट तो इन अकाउंट आ जाती है, पेमेंट आ गई 1 करोड़ रुपया, मैं क्या करूं? कौन सा जीएसटी लेस करूं? वो बड़े खुश, ठीक है चलो हो गया। लेकिन ये तो बता दो अब लास्ट ईयर के टर्नओवर में जीएसटी लेना है कि नहीं लेना? वो कहां लिखा है? वो तो पेमेंट के लिए लिखा है जीएसटी। और आपको याद है कुछ सेक्शनों में लिखा हुआ है जीएसटी लेस करके टीडीएस काटना है। अरे है ना, आपका भी तो, हमारा भी तो टीडीएस जीएसटी लेस करने के बाद ही कटता है, तो वो कहां नहीं लिखा हुआ? अब मैंने उनको बोला ये क्या करना है? कहते सोचते हैं एक सर्कुलर और देना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन के केस है वो प्रॉब्लम है ना। सपोज करो मेरा 11 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें जीएसटी 1 करोड़ 10 लाख रुपया है, तो मैं तो कवर्ड ही नहीं हूं अगर जीएसटी लेस हो जाए तो।
सर मैं कवर्ड ही नहीं हूं, अगर जीएसटी लेस ना हो तो मैं कवर्ड हूं। मेरे को तो यही नहीं पता मैं आज कवर्ड हूं कि नहीं हूं। बॉर्डर लाइन के केस कह रहा हूं, बॉर्डर लाइन, बड़े वाले केस नहीं, बॉर्डर लाइन वाले में तो मुझे देखना पड़ेगा। अब करूं तो मरा, ना करूं तो फंस गया मैंने कहा जल्दी बताओ। कहता जी देखते हैं, मतलब हिलाना पड़ता है उनको, मुझे बता दो एक चीज जी। समझ में आ रही है, ये एक इशू बड़ा चला आ रहा है, ये भी बताएंगे वो, मुझे क्या पता, ये फंसा हुआ हूं मैं। अब आगे बढ़ रहा हूं, क्लियर हो गया सर। अब आपको मैंने बोल दिया, अगर आपका टर्नओवर किस लिए देखना है कि वेदर यू आर कवर्ड अंडर 206C1H और नॉट, बस उसके लिए देखना है। फिर भूल जाओ, लास्ट ईयर का देखना है, हर साल देखना है लास्ट ईयर का, हर साल लास्ट ईयर का देखना। कवर्ड हूं, फिर सोचूंगा 50 कब पूरे हो रहे हैं, और 50 के ऊपर मुझे, मेरे से लोग सवाल पूछते हैं सब इस कलेक्ट करने के लिए कैसे करें, कैसे करें। एक बड़ी बड़ी कंपनियां सैप जो यूज करती हैं, उन्होंने तो बेड़ा गर्क की कर दिया। उस सैप वालों ने पता क्या किया है पुरुषोत्तम जी, जो भी 30 सितंबर तक पेमेंट ड्यू थी, मतलब जो कि पिछले 30 सितंबर 2020 तक, उसके ऊपर डेबिट नोट इशू करवा दिया। सबको डेबिट नोट इशू कर दो, जो भी पेमेंट ड्यू थी 30 सितंबर 2020 की। और उसके बाद कहते हैं बिल पे ही चार्ज कर दो, टीसीएस का बिल में ऐड कर दो। मैंने उनको सवाल पूछा, आपने कह तो दिया कि बिल पे ऐड कर दो और पिछला भी कर दो, अगली साल मेरी उसकी पेमेंट 50 से कम आई तो मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, उसके अगले साल 50 से ज्यादा आई तो कलेक्ट करना उसी साल का, पिछले साल का तो नहीं करना। मेरे कैसे हिसाब रखूंगा कि कब करना है कब नहीं करना, आप बता दीजिए, क्योंकि आपने तो एंट्री कर दी और दिखा दिया रिकवरेबल, आपको चार्ज करके कैसे कर देंगे, ये तो मरवा दिया। बड़े बड़ी कंपनियों की बात अलग है, हिंदुस्तान लीवर, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के टर्नओवर ही सबके बड़े बड़े और सबसे 50 से ज्यादा हो। एक स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल का कभी 50 से कम आ जाती है पैसे, कभी 50 से ज्यादा आ जाएगी, हो सकता है उससे अगले साल ना आए। तो मेरे को क्या करना है, मैं तो नहीं कर सकता, तो कैसे करें। दो तरीके हैं सर, या तो आपके पास पेमेंट आई, सपोज करो 20 लाख, 0.1% 2000 बनता है, तो आप तो ये करिए, या तो उसका जमा ही कम करिए, उसका जमा करिए 90,98,000 और 2000 रुपया टीसीएस करके कलेक्ट करके जमा करा दीजिए, या फिर डेबिट नोट रेज कर दीजिए, रोज का कर दीजिए, आप हर महीने के एंड में कर दीजिए, सारा डेबिट नोट इशू कर दीजिए, इतने इतने का पैसा पेमेंट करिए। बात तो एक ही है, पेमेंट तो अपनी जेब से ही जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कलेक्शन दे रहा है उसी में से तो करनी है। तो ये तो आपको सोचना है कि डेबिट नोट इशू करना है कि कैसे करना है, लेकिन पेमेंट तो आपको कलेक्ट करनी है। अब बहुत इशू है इसमें, मैंने पहला इशू तो कर दिया शेयर्स का, सिक्योरिटीज का। सर मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो गुड्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी कौन बेच रहा है, महाराज दिल्ली में बीएससीएस देती है, टाटा पावर देती है, आपके गुजरात में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे रही है, वो तो कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बैंक, उसमें नहीं कलेक्ट करना। लेकिन मेरी फैक्ट्री का बिल अगर 50 लाख से ऊपर आता है, और जब सेलर मैं सेलर को पेमेंट दूंगा, तो सेलर टीसीएस भी कलेक्ट करेगा मेरे से, सेलर मेरे से इलेक्ट्रिसिटी में सीएस भी करेगा, बिकॉज सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड्स। उन्होंने क्लियर कर दिया है, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड्स। लेकिन साथ में उन्होंने सर्कुलर में लिखा, अगर आप शेयर बेचेंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू, तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। हमारे शेयर बिकते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है या लिस्टेड कंपनी के मैंने शेयर ऑफ मार्केट बेचे हैं, ऑफ मार्केट बेचे हैं, और वो 50 लाख से ऊपर हैं, तो सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा टीसीएस उस बायर से, अगर मेरा टर्नओवर पिछले साल का बिजनेस है और 10 करोड़ से ऊपर है। अगर मेरा टर्नओवर नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, इवन कैपिटल एसेट है तो भी करना पड़ेगा। अरे कैपिटल एसेट है शेयर का तो भी करना पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, किस
का टर्नओवर, कौन सी आइटम का वो नहीं ले रहा, गुड्स बिजनेस का टर्नओवर। लेकिन मेरे को इवन आइटम बिजनेस की नहीं है, सेल ऑफ गुड्स है, बट वो बिजनेस नहीं है मैं कर रहा, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैंने तो अपने शेयर बेचे इन्वेस्टमेंट वाले, तो भी कलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है सर? यही तो उन्होंने क्लियर किया कि लिस्टेड कंपनीज के शेयर के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से बिके और उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हो तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, इसका मतलब बाकियों पे तो करना है। अब मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी आना है, और मैंने अब जी सवाल पूछा, मैंने पुरुषोत्तम जी को 2 करोड़ का माल बेचा और पुरुषोत्तम जी ने मुझे 1 करोड़ 60 लाख का माल उन्होंने भी बेचा मुझे। मैंने परचेज किया पुरुषोत्तम जी से 1 करोड़ 60 लाख, मैंने पुरुषोत्तम जी को बेचा 2 करोड़ का, मैंने पेमेंट तो सिर्फ 40 लाख लेनी है, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं करना? अब उनके पास जवाब ही नहीं। अब क्या करें, क्योंकि पेमेंट तो आई नहीं है, कंसिडरेशन काइंड में है। अब वो तो बुक एडजस्टमेंट है। कहते बताते हैं, कहते डीम्ड मान लो। मैं कह कैसे डीम्ड मान लो, बता तो दो, और किस वक्त डीम मानू? अरे ये तो बता दो किस वक्त डीम मानू, क्योंकि मैं तो माल बेच रहा हूं, मैं तो माल खरीद रहा हूं, मैं तो माल बेच रहा हूं, मैं तो माल खरीद रहा हूं, मैं तो नेट पेमेंट करूंगा जब होगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात सर? ये क्लियर हो रहा है सबको कि मैं कह रहा हूं मेरी आपस में सेल है तो क्या होगा? मेरी कंपनियां है, ग्रुप कंपनियां होती हैं, आपस में सेल करते ही रहते हैं यार, इधर से उधर बेच, हमारा तो रोज का काम है। तेरे को बिल बना दिया उसने, मुझे बिल बना दिया, समझते ही हो ना मैं बातें क्यों करूं? तो वो भी क्या होगा? अभी कोई जवाब नहीं है। अभी जवाब आएगा कि भाई ये आपस में जो सेल परचेज होगी उसमें तो नेट अमाउंट तो 50 लाख से कम है, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं करना है? कहते बताते हैं। बताएं, बताते हैं सर, अभी तो बताएंगे। मैं कहा काम तो शुरू हो गया तो बताएगा कब? कहते सोचने तो दो, आपने तो सवाल रेज कर दिया, हमें भी तो सोचना पड़ेगा। सोच लो भाई, है तो दिक्कत ही, है तो दिक्कत ही। फिर मुझे कहा बायर कौन होता है? अब बायर की डेफिनेशन पढ़ेंगे सर? नहीं, पहले सेलर की पढ़िए, सेलर की पढ़िए, बायर की बाद में। सेलर के आगे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़िए सर। अदर देन कौन है? सेलर के आगे, सेलर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, वो तो हो गया, आगे चलिए, आगे थोड़ा। नॉट बीइंग, इफ एनी डिफिकल्टी वाला सर? नहीं, उसी सेलर की डेफिनेशन पूरी पढ़ दीजिए। Okay, seller means a person whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceeds rupees 10 crore during the financial year preceding the financial year in the sales of goods is carried out, not being a person as the central government by notification. बस यहाँ पढ़ लिया जी, और आगे कुछ लिखा है? Specify for this purpose subject to such conditions as may be specified therein. ये तो अभी सफाई स्पेसिफाई करेंगे ना। अब बायर की डेफिनेशन पढ़िए, अब आपको क्लियर होगा। जी सर। For the purpose of this subsection, buyer means a person who purchases any goods but does not include central government, स्टेट गवर्नमेंट, an embassy, high commission, legation, commission, consulate, trade representation, नीचे फिर आ गया लोकल अथॉरिटी, local authority, नीचे फिर पढ़िए। a person importing goods into India or any other person as the central government by notification. वेरी गुड, वेरी गुड। हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को माल बेचेंगे, ठीक है ना जी, और उससे कलेक्ट करेंगे, टीसीएस कलेक्ट नहीं होना, ठीक हो गया, उनकी इनकम भी वैसे माफ होती है। स्टेट गवर्नमेंट को माल बेचेंगे, उससे कलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर मैंने माल बेचा गुजरात यूनिवर्सिटी को, उनकी इनकम तो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1023C3 IAB में, होली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। क्या गुजरात यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है? क्या गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट है? मैंने उनको फर्नीचर बेचा 2 करोड़ रुपए का, मैंने उनको कंप्यूटर बेचे 3 करोड़ रुपए के, मैंने और भी आइटम बेची, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है? करना है। लेकिन उनको तो रिटर्न में तो इनकम एग्जेम्प्ट है उनकी, अब उनको टीसीएस देना पड़ेगा। अब क्या करो? या तो स्पेसिफाई करो, नहीं तो वो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज नॉट ए स्टेट, यूनिवर्सिटी नॉट ए गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी इज नॉट ए गवर्नमेंट। हमारे कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा उनको। रिटर्न तो भरनी पड़ती है, आजकल तो गुजरात यूनिवर्सिटी को भी रिटर्न भरनी पड़ती है, तो कंपलसरी है, लेकिन तब तो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा।
अरे वो तो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ तो ये भी नहीं लिखा हुआ जैसे बाकियों में लिखा है कि 197 में जाके लोअर रेट का सर्टिफिकेट ले लो या नील रेट का ले लो। 206 मैनेज में नील रेट है ही नहीं या लोअर रेट है ही नहीं, मैं फॉर्म 13 भी नहीं अप्लाई कर सकता। तो भैया हर यूनिवर्सिटी, अरे और भी देखो जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट नहीं है, अरे सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सारी गवर्नमेंट की कितनी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज हैं, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है या आपके भी यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो अलग है, वो तो क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, अरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी माल खरीदा और उनको भी पेमेंट करनी है, तो सेलर उनसे कलेक्ट करेगा टीसीएस? टैक्स तो वो देते नहीं, टैक्स तो देते नहीं है, टीसीएस तो कलेक्ट करना पड़ेगा। अरे कितनी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, कितनी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है जिनकी इनकम तो एग्जेम्प्ट है, इनकम एग्जेम्प्ट है, तो भी करना पड़ेगा। अबे भैया ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना जी, ईपीएफओ है ना, और ईपीएफओ को कोई माल चाहिए, उनकी इनकम तो एग्जेम्प्ट है 1025 में, उनको तो रिटर्न भी भरना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जब वो खरीदेंगे और 50 लाख से ऊपर तो कलेक्ट करिए, या तो कोई नोटिफिकेशन दो ना, या नाम दो किस किस इंस्टीट्यूशन, लिख देते हैं कि जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और जिनको रिटर्न नहीं भरनी होती, कम से कम उनको तो माफ कर दो। अरे उनको तो माफ कर दो, कहां माफ किया आपने? अब मेरी बात को समझ रहे हैं सर? मैं आपको टेक्निकल इश्यू बता रहा हूं, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, आगे भी बताऊंगा, कई चीजें हैं। अब आगे चलता हूं सर, समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूं? आगे चलो। Yes, sir. मैंने बिल डिस्काउंटिंग कराई है, आजकल तो सारे बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं। बैंक ने मुझे पेमेंट कर दी 90%, 80%, इसका क्या होगा? पेमेंट आई, मुझे नहीं आई। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आंसर तो मुझे पता है, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने 2 करोड़ के बिल डिस्काउंट करा के 80%, 90% बैंक से पेमेंट ले ली, कहीं 70 भी मिलती है, कहीं 80 भी मिलती है, कहीं 90 भी मिलती है। सर इसमें कोई कंसीडरेशन रिसीव नहीं हुआ, ये लोन है। बिल डिस्काउंटिंग इज ए लोन, इट्स नॉट एन कंसीडरेशन रिसीव, ये तो बैंक ने दिया। अगर कल अगर वो पेमेंट नहीं करता तो मुझे वापस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना, तो इट इज नॉट ए कंसीडरेशन। लेकिन जब बिल डिस्काउंट की पेमेंट वो कर देगा बैंक को और बैंक मुझे डिफरेंस देगा वही 10%, 20%, तो उस केस में मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1%। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बिल डिस्काउंटिंग का समझ में आया सर? क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग तो रोज कराते हैं हम, तो बिल डिस्काउंटिंग इज अ लोन, इट इज अ लोन। एंड लोन जब हो गया तो उस केस में मैं ये कह रहा हूं वो मेरी को कंसीडरेशन नहीं आई है, वो मेरा लोन है। मेरे को कंसीडरेशन तो जब आएगी जब वो पेमेंट कर देगा मेरा बायर, किसको? बैंक को, और बैंक मुझे डिफरेंस दे देगा। अरे देगा कहां, वो मेरे अकाउंट में ही कर देता है क्रेडिट, तो मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा। अरे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? कि भैया इसको ऊपर टीसीएस काटो अब, क्योंकि ये पेमेंट आ गई, आई तो 10%, टीसीएस तो पूरे 100% में काटना है। आप बात को समझ रहे हैं सर? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। अरे टीसीएस तो उसमें काटना है जो मुझे पेमेंट आएगी टोटल। मैंने 1 करोड़ का बिल दिया, पहले आपने 90 लाख मुझे दे दिया बैंक ने, तो मुझे कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट किया। लेकिन जब 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो इमीडिएटली मुझे 1 करोड़ रुपए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भैया करो, बैंक की स्टेटमेंट देखते रहो, चेक करते रहो कि भैया मुझे टीसीएस इसमें कलेक्ट करना है बायर से, क्योंकि डिस्काउंटिंग करा ली आपने। मैं क्या करूं? करेगा, आपको करना ही पड़ेगा, मैं इसमें क्या करूं? अब एक ऐसा बिल बनाया जिसमें मैंने बिल मशीनरी खरीदी, और मशीनरी की इंस्टॉलेशन के खर्चे भी है 2 लाख रुपए, 50-70 लाख की मशीन, 2 लाख इंस्टॉलेशन का बिल उसने मुझे दे दिया। तो बताइए अब क्या करूं? मेरे पास पेमेंट आ गई, क्या करूं? मशीनरी भी तो गुड्स है, मशीनरी भी तो गुड्स है, और ये थोड़ी लिखा है कि गुड्स ऑफ द बिजनेस, चाहे वो कैपिटल गुड्स है या कुछ है, मशीनरी में भी गुड्स है। सर गुड्स सारे मूवेबल होते हैं, प्रॉपर्टी में नहीं होगा, क्योंकि वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड खरीदी तो उसमें नहीं होगा, लैंड बेची उसमें नहीं होगा, बिल्डिंग बेची उसमें नहीं होगा, वो तो इमूवेबल है। और उसमें तो वैसे भी आजकल टीडीएस है, उसमें तो वैसे भी टीडीएस है।
अगर आपकी 30 लाख से ऊपर 50 लाख से ऊपर हो तो टीडीएस होता ही है, उसमें तो बात छोड़ ही दो। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 72 लाख की पेमेंट आई, 70 लाख मशीनरी की, 2 लाख रुपया इंस्टॉलेशन। तो क्या करना है, टीसीएस कितने में कलेक्ट करना है सर? अगर अलग अलग है ना तो 2 लाख पर 194C लगेगा, उस पर टीडीएस कटेगा और 70 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 70 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा और 2 लाख पे टीडीएस, क्योंकि इन्होंने सेकंड प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, अरविंद जी सेकंड प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि जिस चीज पे टीडीएस कलेक्ट होगा उस पे आपने करना है टीसीएस कलेक्ट। तो ये भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगला सवाल ले रहा हूं सर। मैंने एक गाड़ी, परशोत्तम जी ने एक गाड़ी खरीदी, लेट्स से क्रेटा, और वो 15 लाख 16 लाख की गाड़ी है, जो भी क्रिस्टा है तो ज्यादा है, जो भी है, खरीदी 16 लाख की गाड़ी। क्योंकि ये B2C है तो वो कलेक्ट करेंगे टीसीएस मेरा। 10 लाख के ऊपर की गाड़ी पे टीसीएस कलेक्ट होता है, वेरी गुड। तो ये टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट हो गया, तो 2061H में नहीं करेंगे वो, मुझे एक ही जगह करेंगे ना, वो नहीं करेंगे। लेकिन रुकिए सर, गाड़ी B2B है, B2B में टीसीएस होता ही नहीं। एक मारुति ने एक अपने डीलर को गाड़ियां बेची, मारुति ने अपने डीलर को गाड़ियां बेची, चाहे गाड़ी की कीमत 50 लाख हो, 40 लाख हो, 20 लाख हो, और 10 गाड़ियां बेची, तो उसमें टीसीएस नहीं है 2061G में, है ही नहीं। लेकिन अब उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 वो क्या कंसीडरेशन रिसीव्ड मोर देन 50 लाख, तो टीसीएस कलेक्ट करेगा मारुति। फ्रॉम होम? फ्रॉम इट्स डीलर, फ्रॉम इट्स डीलर करेक्ट करेगा। मेरी बात समझ गए? अब एक परशोत्तम जी का ऑफिस है, तो परशोत्तम जी ने सोचा, बड़ा ऑफिस सपोज कीजिए, 10 मारुति खरीद ले 9-9 लाख की, 90 लाख की गाड़ियां खरीदी, हर गाड़ी की कीमत 10 लाख से कम में, टीसीएस नहीं कलेक्ट हुआ, कंज्यूमर है नहीं कलेक्ट हुआ। लेकिन क्योंकि 90 लाख है तो इस वक्त डीलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा उस 90 लाख में। आप समझ में आ रहा है? गाड़ियों की बातें बता रहा हूं मैं आपको गाड़ियों की बता रहा हूं। B2C 10 से ऊपर है, टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट होता है। B2C 10 से नीचे है, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट पेड फॉर मोर देन, कुछ गाड़ियां मिलाकर अगर 50 से ऊपर है तो टीसीएस कलेक्ट करेगा B2C में। B2B में टीसीएस नहीं है, लेकिन B2B में अब क्या लगेगा? 206C1H। ध्यान रख रहे हैं मेरा? आसान काम नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भी कलेक्ट होगा, B2B में भी टीसीएस अंडर 206C। ये भी आपको बता दिया, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने स्क्रैप बेचा, परशोत्तम जी एक इंडस्ट्री है, आपके क्लाइंट ने स्क्रैप बेचा है, तो क्या होगा? और स्क्रैप 50 लाख से ऊपर है और वो आया मुझे पेमेंट, तो 206C1H लगेगा? जी नहीं लगेगा, क्योंकि 206C1 में टीसीएस ऑलरेडी वहां हो जाता है, वहां पे टीसीएस स्क्रैप पे ऑलरेडी है। आपको मालूम है ना, 206C1 में स्क्रैप पे टीडीएस है, तो बात ही खत्म हो गई, नहीं कटेगा। मैंने वुड खरीदी, टिम्बर खरीदा, टिम्बर वगैरह वो पे ऑलरेडी टीसीएस है 206C1 में, तो अगर ऑलरेडी वहां पर है तो यहां नहीं होगा, वहां पे नहीं होता तो यहां जरूर होता। ये भी क्लियर रखना है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर 206C1 में कट गया, कलेक्ट हो गया, 206C1G में हो गया, 206C1F में हो गया, तो 206C1H नहीं लगेगा। और ऑलरेडी किसी आइटम पे टीडीएस कट गया तो भी नहीं लगेगा। एम आई राइट? तो भी नहीं लगेगा। अब अगला सवाल पूछ रहा हूं, पुरुषोत्तम जी, मैंने माल स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल किया है, आपका गुजरात में गिफ्ट सिटी है ना, और मैंने गिफ्ट सिटी को माल दिया एक डीलर को, वहां पर एक मैन्युफैक्चरर को 3 करोड़ का, तो क्या मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं करना? करना है कि नहीं करना? कोई बताएगा? करना है कि नहीं करना? गिफ्ट सिटी में दिया, करना है सर। कहां लिखा है करना है कि नहीं लिखा? करना है, क्योंकि वहां लिखा है कि जो गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया है उसमें नहीं करना है। जो गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया है
उसमें नहीं करना। ये मैंने तो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया नहीं किया, मैंने तो गिफ्ट सिटी को दिया, एक्सपोर्ट तो वो करेगा, मुझे करना पड़ेगा गिफ्ट सिटी में भी टीसीएस कलेक्ट। आप बात को समझ रहे हैं? अगर मैं सीधा एक्सपोर्ट करता टू ए कंट्री आउटसाइड इंडिया तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, लेकिन मेरा बायर तो गिफ्ट सिटी में है, और गिफ्ट सिटी में चाहे वो तो एक्सपोर्ट माना जाता है फॉर अदर पर्पसेस, फॉर जीएसटी तो मानते हो ना, जीएसटी में तो मानते हो, लेकिन कहता ना होगा जीएसटी, होगा मेरा छोटा भाई, लेकिन हमने तो कहा है जो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया करोगे सिर्फ उसमें नहीं कलेक्ट करना। ये तो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया है ही नहीं, ये तो आपने यहां पर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ईओयू यूनिट में, तो कलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ? और मैं आगे जा रहा हूं। ए ने माल इंपोर्ट किया जर्मनी से, ए ने किया माल इंपोर्ट। अगर ए माल इंपोर्ट कर लेता है तो वो क्या है, वो बायर की डेफिनेशन में नहीं आता। एम आई राइट और रॉन्ग? बायर में डेफिनेशन में नहीं आता। कोई बायर की डेफिनेशन लिखा गुड्स कंट्री फ्रॉम इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नहीं आता ना सर। एम आई राइट सर? पहले ये क्लियर कर दे क्योंकि पढ़ के कि बायर जो इंपोर्ट करता है उस पर टीसीएस नहीं होता। तो सेलर की डेफिनेशन भी आती है, बायर भी देखना है ना, वो कवर्ड नहीं है, ठीक है ना सर? बायर कवर्ड नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूं, ए ने माल बेच दिया बिफोर इट रीचेस इंडिया, हाई सील सेल, और बी ने खरीद लिया। ए ने बेचा और बी ने खरीदा, बी माल ले आया, तो क्या ए को कलेक्ट करना पड़ेगा? जी सर। क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो इंपोर्टेड, वो तो इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो तो बाहर ही बेच दिया उसने, तो वो डेफिनेशन में आता ही नहीं बायर की। ए ने जो माल बेचा वो बायर को, किस बायर को बेचना है? जो इंपोर्ट इनटू इंडिया कर रहा है वो उससे नहीं लेना, तो वो तो इंपोर्ट इंडिया कर रहा था ना, वो बायर में वो तो इंपोर्ट इनटू इंडिया कर रहा था। कौन? ए। और ए ने सेल कर दिया, किसको किया? बी को, और बी इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, तो फिर बायर की डेफिनेशन में क्या आएगा? बी। ए ने माल जो जर्मनी से ला रहा था रास्ते में ही बी को बेच दिया, अब इंपोर्ट किसका माना जाएगा? बी का इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि बी कस्टम ड्यूटी देता है, बी का इंपोर्ट माना जाएगा। जब बी इंपोर्टर हो गया तो बायर की डेफिनेशन में आएगा नहीं, और बायर की डेफिनेशन में आएगा तो सेलर कैसे कलेक्ट करेगा? थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है, समझिए पढ़ो सर, दोबारा समझने में टाइम लगा, अभी ध्यान से पढ़िए। ए सेलर है, ए ने माल बेचा, ए इंडिया में बैठा है, ए इंडिया में बैठा है, उसने क्या किया, अभी इंडिया में माल पहुंचा नहीं है, रास्ते में ही बेच दिया। अब माल किसका है? बी का है, और बी लाकर कस्टम ड्यूटी देता है, तो इंपोर्टर कौन हो गया? बी हो गया। और जब वो इंपोर्टर हो गया तो वो बायर की डेफिनेशन में आता ही नहीं, तो ए कैसे कलेक्ट कर लेगा उससे? ए कैसे कलेक्ट कर लेगा जब तक वो बायर इंडिया का ना हो? बायर की डेफिनेशन में नहीं है, क्योंकि वो तो इंपोर्ट कर गया, वो बायर की डेफिनेशन में नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब अभी कन्विंस हुए नहीं, अभी ज्यादा नहीं हुए, थोड़ा समझ में आ गया है, थोड़ा समझ में आ गया, क्योंकि जो पढ़ रहा है ना, मैंने किताब सामने रखवाई है, इसलिए रखवाई है कि ताकि आप ध्यान रखो कि बायर अगर इंपोर्ट कर रहा है तो वो बायर की डेफिनेशन में नहीं आता, तो बायर की नहीं आता तो सेलर कैसे कलेक्ट करेगा उससे? सेलर ने किससे कलेक्ट करना है? बायर से। अगर वो डेफिनेशन में आएगा तो ही तो कलेक्ट करना है, वो बायर डेफिनेशन में नहीं आएगा तो कलेक्ट कैसे करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। है ना? इश्यूज है ना? इश्यूज हैं। ये 206 आसान नहीं है, ये एच ये मरवा दिया। अभी तो थोड़ी देर रुकिए पुरुषोत्तम जी, 26 EQ में पता क्या आने जा रहा है कि ओपनिंग डेटर का बैलेंस बताइए, कितनी सेल करी है, कितना रिसीव किया है, और कितना बैलेंस क्लोजिंग है। मर गया आदमी, बना के थक जाएगा। ये 26 EQ की जो क्वार्टरली रिटर्न है ना, उसमें भरना पड़ेगा। क्या ओपनिंग डेटर कितने थे, कितना परचेज किया, कितने लेस हुए, और कितना सेल किया, कितना आ गया, उस आगे पे कट गया नहीं कट गया, और बाकी वो है। कर लो आप जो करना है,
समझ लो। अब आप ध्यान से रखना, ये कंप्लायंस बढ़ जाएगी, कंप्लायंस ही कंप्लायंस होने वाली है। और नजला किसके ऊपर गिरता है? हम लोगों पे गिरता है। पैसे किसको मिलते हैं? हमें कहाँ मिलते हैं? हम लोगों को क्लाइंट पैसे नहीं देता है, काम सब कर लो, पैसे देते हुए जान जाती है। लेकिन देखिए, ये देखिए, ये काम बढ़ गया और बढ़ गया। क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ेगी। अरे आपको तो सब कुछ देना है, नहीं तो 200 रुपए रोज के फाइन है क्वार्टरली रिटर्न नहीं भरी तो, याद है ना। और आपके पास 10,000 से 1 लाख तक फाइन है अगर आपने कलेक्ट नहीं किया टीसीएस। 10,000 से 1 लाख रुपए की पेनल्टी है 271 के आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया। हर जगह से मार दिया हम लोगों, हर जगह से हमें मारेंगे। पहले तो क्लैरिटी नहीं है, गुड्स क्या है? अरे बताओ तो सही सर, पहले तो क्लैरिटी नहीं है कि इतने एग्जेम्प्ट यूनिट माल खरीदेंगे, इतने एग्जेम्प्ट यूनिट माल खरीदेंगे, सबको टीसीएस कलेक्ट अगर किया तो रिफंड लेने के लिए रिटर्न तो भरनी पड़ेंगी। कोई सा भी हो, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी है, एक अथॉरिटी है। उनको भी बोला गया। और ये लोकल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड आते हैं, ये अथॉरिटी नहीं आती है। ये तो 1046 में इनकी इनकम माफ है। सेक्शन 1046 में अगर नोटिफाइड कर दो तो उस अथॉरिटी की इनकम माफ होती है। अरे वो नोटिफाइड अथॉरिटी गवर्नमेंट थोड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी है। उनको भी तो माल खरीदना है, और उनसे माल खरीदेंगे तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और 50 लाख से ऊपर पेमेंट होगी और तो होगी तो उनका क्रेडिट कौन लेगा? रिटर्न सबको भरनी पड़ेगी, ईएपीएफ को, ईएसआई वालों को, अरे कई फंड हैं, सबको रिटर्न भरनी पड़ेगी। कर लो बस, भर लो, भरो भरो भैया, रिटर्न सबको भरनी पड़ेगी। मैं क्या कह सकता हूँ? यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इनकम उनकी माफ है सेक्शन 1023C में, लेकिन रिटर्न तो भरनी पड़ती है। और अब उसको टीसीएस वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में तो उनकी इनकम निल है, इनकम तो एग्जेम्प्ट है, टीसीएस तो वापस लेना पड़ेगा। अरे कोई रूल बना देते कि भैया उसके लिए सर्टिफिकेट ले लो ना, कोई नहीं, कोई नहीं है, आपको तो देना ही पड़ेगा। और वो कहेगा मैं नहीं देता, हम कहेंगे तेरे को देना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी है। मैं क्या कर सकता हूं? ये तो स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी में तो देना ही पड़ेगा। कलेक्शन ये दिक्कत आएगी। और आप हिसाब रखो, हर एक हर बार हिसाब रखो, बैंक का तो बैंक का हिसाब रखो, बिल डिस्काउंट किया तो भी हिसाब रखो। अगर बिल डिस्काउंट नहीं किया, कलेक्शन पर बैंक भेजा है तो भी बैंक से पता लगेगा, तो उसी दिन पेमेंट मानी जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं ना मेरी बात? अरे कई बार बिल डिस्काउंट कराते हो, कई बार बिल डिस्काउंट नहीं कराते, पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक होती है। कई बार आप 30 डेज का क्रेडिट देते हो, 60 डेज का करते हो, लेकिन वो साइन कर देता है प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद पेमेंट आती है। जब तक पेमेंट नहीं आएगी तब तक तो आपको बैठना है। लेकिन अब आगे सुनिए, जो लोगों ने समझा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर कोई अंग्रेजी गलत लिख दी है कि कोई सेल रिटर्न आएगी तो क्या होगा, कोई डिस्काउंट देना है तो क्या होगा। बताइए क्या है? कोई क्रेडिट नोट दिया तो क्या, डिस्काउंट दे दिया आपने 5%, तो क्या होगा सर? कोई बताएगा मुझे क्या होगा? लेस करना है कि नहीं करना? ऐड करना है क्या? जीएसटी जो रिकवरी हुई, आपको 70 लाख मिला और 3 लाख का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको क्या 73 लाख पे टीसीएस लेना है कि 70 लाख पे लेना है? बोलिए, कोई बोलेगा? मैंने कहा 70 लाख की पेमेंट आई, 3 लाख 70 लाख पे 70 लाख जो डिस्काउंट दिया वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया, वो तो हमें तो देखना ही नहीं है डेबिट साइड, हमें ना क्रेडिट देखना ना डेबिट देखना है। हमने तो कहा लाया क्या, आया क्या, वो दे दे, उसके ऊपर करना है। सो उनकी अंग्रेजी कईयों को समझ नहीं आई सर। शायद परसोत्तम जी ने मेरा सुन लिया या करसोत्तम जी ने कोई और लेक्चर सुनाओ, लेकिन लोग तो यही सोच रहे थे कि वो तो ऐड करके करना पड़ेगा। मेरा अपना नेफ्यू जो बना रहा है वो कह रहा है जी तो ऐड करना पड़ेगा। मैं कहा पढ़ तो ले। कहता है जी तो समझ में तो यही आ रहा है, जीएसटी के साथ लिखा हुआ है तो इसलिए समझ में नहीं आया। वो जीएसटी के साथ ही लिख दिया देयर इज नो इम्पैक्ट। वो नो इम्पैक्ट का मतलब है कि तेरा भैया उससे क्या लेना देना, तुझे तो पेमेंट देखनी है, तुम्हें सेल थोड़ी देखनी है, तुम्हें कैश का अगर आपने तुमने वो दे दिया वो थोड़ी देखना है, आपने कुछ देखना ही नहीं है, आपने पेमेंट देखनी है। तो अगर क्रेडिट नोट दिया तो पेमेंट कम आएगी, अपने आप कम आ गई। अरे डेबिट नोट दिया तो पेमेंट ज्यादा आ जाएगी, तो आ जाएगा।
तुम्हें क्या दिक्कत है? सेल रिटर्न हुआ तो सेल कम हो गई, पेमेंट कम आएगी। तो सेल रिटर्न वगैरह में कुछ होना ही नहीं है। अगर उसने कहा जी क्वालिटी खराब थी तो उसने मेरे पैसे काट लिए, तो काट लिए मेरे भाई। हमें तो जब पेमेंट आनी है उसकी बात करनी है ना। हमें पैसे काटे तो क्या हुआ, क्रेडिट नोट दे देंगे उसको। मेरे बात को समझ रहे हैं सर? ये लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए कोई देखना नहीं है, सिर्फ जीएसटी लेस नहीं करना उसमें से। बाकी तो जो आया 50 से ज्यादा है, टीसीएस कलेक्ट करिए। हम आपको कुछ कह ही नहीं रहे, सिंप्लीफाई करा दिया मैंने। ये सिंप्लीफाई हो गया कि मुझे कुछ नहीं देखना टीसीएस। लेकिन याद रखिए, अगर सैप करेंगे ना, हर जगह टीसीएस बिल में चार्ज कर लेंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगले साल 50 आए, तो आपने तो उसे चार्ज कर रखा, उससे अगले साल आ जाए, वही कम हो जाए, तो क्या करोगे? तो बेस्ट तरीका तो यही है कि या तो जो पेमेंट आए उसमें से कम करो, या फिर डेबिट नोट इशू कर दो और उससे कलेक्ट करो। मेरे पास तो और कोई तरीका है नहीं सर। 206C में तो और कोई तरीका बन ही नहीं रहा हमारे दिमाग, और कोई तरीका बन ही नहीं रहा हमारे दिमाग। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। टीसीएस की बात है क्या, छोटा सा सेक्शन, 8 लाइन 10 लाइन का सेक्शन है। देखिए कितनी देर से डिस्कस, वो छोड़ देना, वो कह रहा है यार लाइनें गिन रहा है। और भैया लाइनें मत गिरो, एक्सप्लेनेशन में जो सेलर बायर है वो तो एक्सप्लेनेशन में है ना, सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में है। वो गिन रहा है कि मैंने कहा 8 लाइन है कि कितनी है, वो देख रहा है। एक ही सेक्शन है जिसने प्रोवाइजो दे रखे हैं 2, मान लिया। फिर सेलर और बायर की डेफिनेशन है, मान लिया। वो गिन रहा है लाइनें, मैं देख लिया उसको। तभी तो मैं यही तो देखते रहे, तो एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है, मेजर सेक्शन इतना सही है, बाकी तो एक्सप्लेनेशन है। और उस सेक्शन के लिए 1.5 घंटे से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अरे डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, और फिर भी क्लैरिटी पूरी नहीं है। अभी भी कई क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, मुझे पता है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से काफी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो मुझे ये बताइए 206C 1H के साथ कुछ और भी करना है कि सिर्फ क्वेश्चन लेने हैं? इतना तो मैंने कर दिया। अगर किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ले लीजिए सारे क्वेश्चन, जितने हैं उतने ले लीजिए। आशीष तू एक एक वाचवान चालू कर दे अंदर થી પેલામાં છે ને એમાંથી आशीष। यस सर। वैसे तो मैंने कोशिश करी है सारी चीजें बता दें जो इश्यूज थे, फिर भी हो सकते हैं मेरे मुंह दिमाग से निकल गया। बोलिए सर, एक बार किसी से पेमेंट लेनी चालू करा, अगले साल भी वो अगर पार्टी को प्रॉब्लम रही है तो टीसीएस लेके भर सकते हैं क्या? अरे सर, हर साल 50 लाख अलग है, अगले साल का 50 अलग, इस साल का 50 अलग। 50 के बाद कलेक्ट करना है, पहले थोड़ी करना है। आप जबरदस्ती कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दो तो गवर्नमेंट। अरे सर मैं आप बताऊं, परसोत्तम जी बड़ी हंसी आई। एक आदमी कहता है सर मैं माल सप्लाई करता हूं मारुति को। मैं कहा फिर? कहता सर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, काफी माल देता हूं, लेकिन अब तो मारुति को पता लग जाएगा कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। मैं तो मर गया। वो कहेंगे ये तो छोटा यूनिट है, ये तो छोटा यूनिट है। तो मैं कर लूं कलेक्ट? मैं कहा मना कौन कर रहा है, कर ले कलेक्ट। मना कौन कर रहा है, कलेक्ट करके जमा करा दे। समझ में आ रहा है? वो कहता मेरा तो भेद खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? सर सीए भी तो यही रोते हैं, कई सीए की 20 लाख से कम हो तो कहता मेरा तो बिल नहीं बनेगा, तो इसमें पता लग जाएगा जीएसटी नहीं लगाया मैंने। समझ में आ रहा है? सर काउंसिल में ऐसा ही लेके आए थे कि आपको क्लाइंट को बताना कि आपकी रिसीट 50% से कम है, उस क्लाइंट्स को बताना, तो सब क्लाइंट को पता चला कि रिसीट। तो इसलिए आपको तो बोगस भी बनाना पड़ गया। वो कहता है तो बना दे तू मारुति को, और मारुति को पता लग जाएगा तू बड़ा है, तू बड़ा है। कितनी टर्नओवर वो थोड़ी तूने बतानी है, तू बड़ा हो गया। ये हालत है सर, ये भी हालत है। एवरी पर्सन है, क्योंकि एवरी पर्सन है, कोई कंपनी थोड़ी है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो, फर्म भी हो सकती है। आपने वहां पर उसके पब्लिश डेटा तो है ही नहीं, आपने बताया नहीं मेरा टर्नओवर क्या है। इमीडिएटली जब टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे तो मारुति कहेगा ये बेकार आदमी है, इसको बंद करो, छोटा मैन्युफैक्चरर है, इससे कैपेसिटी नहीं है। तो सर बार्टर में क्या होगा? बार्टर में क्या होगा? बार्टर में तो बताना है ना, अभी आ रहा है। मैंने तो बताया अभी तक कुछ ना करो, क्योंकि वहां लिखा अमाउंट, और बार्टर में अमाउंट तो वही है जो रिसीव किया। वहां तो वर्ड लिखा एनी अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख 20, तो फिर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। अब उनको यही तो तकलीफ हो रही है, अमाउंट लिखा हुआ है। तो बार्टर में क्या होगा, इसके लिए जवाब आएगा। अभी तो अभी कोई चिंता ना करो। और बोलिए।
बार्टर में ऐसा है कि मटेरियल सप्लाई किया और घर लिया तो क्या होगा? घर में तो एटीसीए होता है यार, वो तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, घर के बाद में क्या मतलब है? और वो घर घर में तो के 194(1)(a) है, वो तो अलग है, उसका तो मतलब ही नहीं है। जिस पे टीडीएस कट गया उसको तो छोड़ दो ना यार, बीच में आए लाओ मत। नहीं सर, 25-30 लाख के 2 फ्लैट ले लिए, टीडीएस तो नहीं। सर टीडीएस वो चीज छोड़ो सर, एक ये तो रखिए, आपको ये तो पता है कि मैं अब तो कह रहा हूँ कि ज्वेलरी बेची मैंने और पर्सनल ज्वेलरी बेची और मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो भी तो आ रहा है, तो भी तो आ रहा है। वो तो उन्होंने तो डेटा माइनिंग करनी है, ये डेटा माइनिंग की वजह से आया। वो कहता ठीक है ना, तेरी सेल है ना, तो ठीक है, हम तुम्हें तंग नहीं कर रहे, जो 10 करोड़ से नीचे वाले हैं उनको नहीं कर रहे, लेकिन उन सबको तो मैं करूंगा ना, जो 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 बिजनेस करते हैं। लाओ भैया टीसीएस कलेक्ट करो, चाहे कोई भी आइटम बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आइटम बेचो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। आप क्लियर हो रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। और बोलिए क्वेश्चन। सर टैली ने भी वही सिस्टम स्टार्ट करवा दिया है सर, ऑप्शन बिल बनते ही टीसीएस जुड़ में। हाँ तो मरेंगे ना बाद में, जब जो छोटे मीडियम एंड स्मॉल स्केल में तो हर तरह अलग अलग होता है, कई बार 50 से कम आएगा तो क्या करेंगे? अरे कैसे करेंगे मुझे तो बता दो, आपने तो उसको डेबिट कर दिया है, आना तो है ही नहीं, कलेक्ट करना नहीं है, आप जबरदस्ती कैसे कलेक्ट करेंगे इससे? वो कहता है ये क्या मतलब है, जब मेरा कलेक्ट नहीं होना तो मेरी क्यों डाल रहा है तू? तो ये दिक्कत आएगी, उनको करना नहीं चाहिए, वो गलत किया टैली वालों ने। सर क्वेश्चंस ले लें? हाँ जरूर लो ना, मैं तो कह रहा हूं लीजिए। Sir, what to do in case SSC provides service and sale goods, amount received cannot be bifurcated? सर सेपरेट बिलिंग करिए ना, सर्विस के लिए तो टीसीएस हो, टीडीएस हो जाएगा। वो जो टीडीएस वगैरह की बात कर लेना, आप क्या चीज है, आइटम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। आप सर्विस के अलग रखिए, उसके अलग रखिए, नहीं तो फिर इकट्ठा कटवाना पड़ेगा, तो इकट्ठा मानो, फिर मुझे क्या पता। वो तो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता है, अगर वो पार्ट है तो वो गुड्स का पार्ट है तो सर्विस भी उसमें ले लो, अगर गुड्स का पार्ट नहीं है तो ठीक है, अगर गुड्स का पार्ट है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ो। Next चलिए question. आगे। My client is a commission agent. He is engaged in auctioning and selling the farm produce of the farmer in APMC. सर पक्का आड़तिया के कच्चा आड़तिया? पक्का आड़तिया गुड्स खरीदता है फिर बेचता है, कच्चा आड़तिया कमीशन एजेंट होता है सिर्फ। ये पक्का आड़तिया होगा तो वो माल खरीदेगा, पक्का लग रहा है लगभग। पक्का आड़तिया का तो माल खरीदना और फिर बेचना है, सीधी बात। पक्का आड़तिया का तो माल परचेज होती है और फिर बेचता है वो, कच्चा आड़तिया सिर्फ कमीशन लेता है बीच में। Okay, sir. In case of purchase of scrap, if one provides Form 27C, then मैंने बोला स्क्रैप पे तो टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट हो जाता है। नहीं सर, उनका क्वेश्चन है then the स्क्रैप पे तो टीसीएस ऑलरेडी हो जाता है। non-resident Indian books foreign tour from Indian tour operator. Does TCS is required to be collected? सर देखिए, टूर पैकेज ऑपरेटर यहाँ पर है, वो सेलर हो गया, और जो बायर है वो टूर पैकेज ले रहा है, उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। जो बायर है उससे टीसीएस कलेक्ट करना है। अब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे भी है कई कि एक सेलर, ये मैं एक पैकेज टूर ऑपरेटर हूँ, एक और आदमी वो है कंपनी, वो खरीद लेती है और वो आगे बेचती है, लेकिन मैंने तो सेलर, मेरा बायर कौन है? कंपनी वाला, मुझे तो टीसीएस कलेक्ट करना है, सीधी बात है। और वो 5, आपको बता दिया 5% है, और उसमें तो कोई लिमिट भी नहीं है, 206C1G में लिमिट भी नहीं है। और जो रेमिटेंस आप करेंगे 7 लाख से ऊपर, वो तो ऑथराइज डीलर टीसीएस कलेक्ट करेगा ही करेगा 5%। सिर्फ अगर एजुकेशन लोन लिया है और फिर भेजा है तो 0.5% है, अदरवाइज तो 5% टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। मैंने बहुत शोर मचाया, मैंने कहा क्या कर रहा है, बच्चे को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, लोन नहीं लिया, और वो अपने पैसे लगाकर कहीं से इंतजाम करके आपस में कर लिया, और उसने 40 लाख की फीस भेजी। आप कहेगा पहले 5% जमा करा, मर गया ना बेचारा। पहले तो अपनी फीस के लिए अरेंज मुश्किल है, अब 2 लाख रुपया टैक्स जमा कराए पहले, लेकिन वो माने नहीं। वो कह रहा जी एजुकेशन लोन लेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो अप्रूव्ड है तो 0.5%, अदरवाइज 5% कलेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आप पैसा बाहर भेजेंगे किसी को, अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। आपको पता है LRS में आप $2.5 लाख हर साल भेज सकते हैं,
2.5 लाख डॉलर तक। उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, 7 लाख से ऊपर है तो टीसीएस कलेक्ट होगा। चलिए और बोलिए। Sir, this threshold limit of 50 lakhs is per buyer for each of future year. सर आवाज थोड़ी आपकी थोड़ी गड़बड़ हो गई, दोबारा बोलना पड़ेगा। कोई नेटवर्क इशू आ गया आपके यहाँ? Just a second, sir. Sir, 50 lakh threshold limit per buyer for each future year. हर साल का 50 लाख है भैया। Each year is a separate year. Each year is a separate year. Is it compulsory to collect TCS through tax invoice? Can we raise debit note to collect TCS? You should raise debit note. You should not collect from वो डेबिट नोट ही बेस्ट तरीका है। ये सैप वालों से गलती हो गई, अब आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, मार देंगे कईयों को। क्योंकि भैया कई बार नहीं आई पेमेंट का क्या होगा, 75 से 50 से कम आई तो टीसीएस कैसे कर, और अकाउंट ही टैली करते रहोगे, टीसीएस का अकाउंट ही टैली करते रहोगे, आपने डेबिट कर दिया ऑलरेडी, तो वो तो दिक्कत पेबल दिखाओगे, फिर वही चक्कर पड़ेगा, फिर वो आपकी बैलेंस शीट में देखेंगे पेबल आ रहा है टीसीएस, ये क्या चक्कर पड़ेगा। छोड़िए ना, उसको करो ही ना। चलो और बोलिए। Any of the participants have any other questions? Because we cannot see any other question in the panel. Yes, I have a question. हाँ बोलिए। The SSE is purchasing and selling goods from same party. Then what will be the TCS implication? अरे यार मैंने तो शुरू में ही बताया, लेट ज्वाइन किया क्या आपने? पहला क्वेश्चन ही मैंने ये बताया, वो बार्टर सिस्टम भी तो यही है, और वो या तो मैंने माल बेचा, मैंने उससे खरीदा भी है। तो मैंने परसोत्तम जी की एग्जांपल दी थी, 2 करोड़ रुपए परसोत्तम जी को माल बेचा, परसोत्तम जी ने मुझे 1 करोड़ 60 लाख का बेचा और 40 लाख रुपए पेमेंट मैंने कलेक्ट करी, तो टीसीएस का क्या होगा? इंतजार कीजिए, अमाउंट तो 40 लाख ही है, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आएगी। नहीं तो मत करिए, क्योंकि अमाउंट तो है नहीं, और तो बुक एडजस्टमेंट है, वही तो रगड़ा है, बुक एडजस्टमेंट का काम है, वही तो बताया आपको। चलिए आगे बोलिए। And the another one, just last question. Another one is if the SSE is purchasing car from the dealer, but the लो भैया आप कहाँ थे सर, सो गए थे कि कब अभी ज्वाइन किया? कारों की तो एग्जांपल दे के थक गया। B2C B2B सारा तो बताया था मैंने, बताया था सर, नहीं बताया था? Yes, yes. अरे B2B कलेक्ट करेंगे 50 से ऊपर आएगा, B2C 10 लाख से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, तो टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। B2C 10 से नीचे की गाड़ियां हैं, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट 50 से ऊपर आ गया तो भी करना, यही तो बताया मैंने। B2B B2C सब बताया था यार। बी तो समझ गए ना, B2C का मतलब क्या है, B2B का मतलब क्या है? Sales made to person A, payment received from person B, in TCS return whose pan to show? दोबारा बोलिए। Sales made to person A, हाँ, payment received from person B on behalf of A. वैसे तो आप ये गलत काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट आप किसको कर रहे हो? A को। क्रेडिट किसको कर रहे हो? जिसको क्रेडिट करो उसी का टीसीएस कलेक्ट होगा, और दूसरे का कैसे करोगे? जिसको क्रेडिट करोगे उसी का टीसीएस कलेक्ट होगा। अब बैंक में ये भी तो होता है, आप जो बिजली का बिल आता है, कई बार पर्सनल अकाउंट से बिल काट देते हो, वो ले लेते हैं ना, लेकिन टीसीएस तो कलेक्ट वही होगा जिसका बिल का नाम होगा। हाँ? चलो और क्वेश्चन? Any panelist have any other question? सर ने इतना सारा अच्छे से समझाया है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा अभी तक। सर मैंने क्वेश्चन के इशू बनाकर आपको जवाब दे दिए, ताकि जो भी आपके दिमाग में थे पहले ही बता दिए मैंने। सही है सर, सही और है। कोई भी है तो नई चीज बताओ ना, मैं उसके लिए सर्कुलर निकलवाना चाहता हूँ ना, तभी तो मैंने सारे बता दिए कि इतने इशू तो ऑलरेडी है मेरे दिमाग में, और कोई इशू आपके दिमाग में तो पूछ लीजिए। सर ये हमारी इकोनॉमी आज वो लिंपिंग हो रही है, उस पर ये क्या असर करेगी? सर आप ही का भेजा हुआ आदमी है और हमें बता रहे हो, मैं इतनी प्रेस करता हूँ उसकी, तो आप उनसे पूछो ना। हम तो उनको प्रेस करते हैं हमेशा। अब ये उनके हाथ में नहीं है सर, ये तो भगवान की जो है, और लीला ये यहाँ की थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड ओवर में है।
स्मॉल और मीडियम तो खत्म ही हो गया है इंडिया में। स्मॉल मीडियम का बहुत बुरा हाल है इस वक्त, बता दूं, पता नहीं क्या होगा। और हम लोग ज्यादा स्मॉल मीडियम से डील करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से करते नहीं है। क्या होगा मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आया। और फिर आप कह रहे हैं कि डेट बढ़वा दो ऑडिट की, और ले लो, पेमेंट मिलेगी नहीं अपने क्लाइंट से। डेट बढ़ गई तो उन्हें देनी नहीं पेमेंट। अभी तक तो आप डेट की वजह से वो आ रहा है आपके पास कि चलो भाई ऑडिट करा दो, ले लो पेमेंट। और जब डेट बढ़ गई तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अभी मेरे पास है ही नहीं पैसे। वो तो कहता है मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, आपको क्या दे दूं। बढ़ाओ डेट। हाँ जी, और बोलो। सर हरीश जी का क्वेश्चन है। हाँ हरीश जी बोलिए। हरीश जी को मैं अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए। हाँ जी हरीश जी बोलिए। पहले नाम लेना भूल गया था मैं इनका। नो हरित अग्रवाल है, कौन है? धारीवाल। सीए वाले ही है ना? धारीवाल सर। धारीवाल, सॉरी धारीवाल मेरे मुंह से गलत निकल गया। हरित धारीवाल अपना वो इंस्टीट्यूट। बोलो जी हरीश जी, सॉरी। और मेरे मुंह से अगर वैसे तो अग्रवाल धारीवाल एक से ही होते हैं, नहीं अलग अलग होते हैं। अग्रवाल जो भाई है, चिंता मत करो। राजस्थानी है सारे ही। बोलिए हरीश जी। नो ऑप्शन फॉर लोअर टीडीएस इन सेक्शन 269C यस into bracket 9 और नो टीडीएस सर्टिफिकेट एनहांस। सर वो आई के लिए है, उसमें एच नहीं डाला। 2069 को पढ़िए तो सही, उसमें एच नहीं डाला है। सर उनका क्वेश्चन वही है कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आने का कोई स्कोप है क्या? कहते हैं 0.1% के बाद क्या दे तुम्हें। वो कहते हैं कि फिर वही वाली बात है, करना ही कितना है, उसके बाद भी डिस्काउंट कहां से दे रहे यार। उसका पॉइंट मैं समझ रहा हूं, वो ये कह रहे क्या दूं, इसलिए वो फिर चुप हो गए। और मैं क्या करूं, नील का देना नहीं चाहते, वो नील तो देंगे नहीं। वो कहते हमें तो थोड़ा बहुत तो चाहिए, तो देने का चांस नहीं है, इसलिए बैठे हुए। सर अगर कोई के पास में 0 डिडक्शन या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इन दैट केस वेदर 206। सर नील का सर्टिफिकेट अलग अलग होता है आइटम वाइज, कौन से सेक्शन का है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई नहीं कटेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिर्फ 2061 के लिए है जो आप जा सकते हैं, बाकियों के लिए नहीं है। और पूछिए। नहीं सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपने इतना सारा अच्छे से समझाया है तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो चलिए फिर तो सर खत्म करें, और क्या है। थोड़ा तो उनको भी अपने पास्ट प्रेसिडेंट है, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जुबेन से विनंती करूंगा कि आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। थैंक यू। जुबेन। On behalf of the All Gujarat Federation of Tax Consultant, Income Tax Bar Association and other professional association, I propose heartily a vote of thanks on today's webinar. A big thank you for enlightening us on the burning issue on the recent changes in the TCS provision. We are very lucky to have you, sir, Bhisma Pitama of the tax and the tax guru of the nation. And thank you all the participants and the office bearer of the co-organizer for the grand success. Under the able leadership of Advocate Bharat Seth and Ashutosh Bhai Thakkar. Yes, please. A big thank you to CA Purushottam Khandelwal for arranging such a webinar for the benefit of the member at large of the All Gujarat Federation and the Income Tax Bar Association as usual. And on the last note, I on my behalf personal as well, sir, we are very lucky to have you once again. और आपने हमें इतना एलाइटिंग किया है कि हमारे विश्वेश जी ने बताया कि कोई सवाल होने का कोई संदेह ही नहीं है। तो at the end, take care all the participants and the panelists, and be safe and be healthy. So good night and see you in the next webinar. Thank you, sir. Thank you. Take care. All the best. Take care, sir. Thank you very much. Thank you, sir. All of you.